or some of them don't have too much time for spending in development. So these are the two questions or two problems. लोगों के पास समय नहीं है या लोग जानते नहीं हैं. So it made me think I should deliver a fundamental course on the website designing for those individuals who are not familiar with coding. So in this session, we will not perform any coding. We simply use some framework and we learn how to design a website without any prior knowledge of any type of coding. So now I start my presentation. Basically, today I will discuss the WordPress. Okay. It is a web designing course using WordPress. So the question is, what is website? It is a question. Website is a collection of web pages which are grouped together and usually connected together in various ways. ठीक है? And जब ये साथ जुड़ जाते हैं तो एक वेबसाइट कहलाते हैं. Then the other question is, what is web page? The website is a collection of web page, है ना? But what is web page? A web page is a document which can be displayed in a web browser such as a Firefox, Google Chrome, Opera, Microsoft Internet Explorer. Such documents are written in the HTML languages, HTML-based technologies. A web pages can be embed a variety of different type of resources such as a style informations, scripts. Scripts means JavaScript or VB scripts or server-side scripting. मीडिया, इमेजेस, साउंड्स एंड वीडियोस. तो इस स्लाइड्स में आप देखेंगे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन है. आपको बहुत सी चीजें सीखना पड़ेंगी. तो इन्हीं चीजों को कम करने के लिए, इसी बर्डन को हटाने के लिए इस फंडामेंटल कोर्स को डिफाइन किया गया कि भाई अगर हमें कुछ ऐसा करना है कि हम कोड नहीं जानते तो हम वेबसाइट नहीं बना सकते क्या? ऐसा नहीं है. ठीक है. This is a top view diagram of any type of web application, how web application works. In the first step, the web browser requests a web page. Web server receives that web page request. After that, web server instructs the application server to process the page. The application server processes the page and generates the output. And at the end, the web server sends the output to the browser. ये एक बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट व्यू. इट इज अ वेरी एब्स्ट्रैक्ट व्यू. और इस पूरे कम्युनिकेशन में, इस पूरे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स स्ट्रक्चर में जो प्रोटोकॉल यूज है वो होता है HTTP प्रोटोकॉल, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. HTTP is a communication protocol used for browsing the web. This protocol uses the message-based model where your client makes a HTTP request to a web server. That server responds to with a resource which is displayed in the browser. Actually, a browser is the HTML parser. It works as a HTML parser. And HTTP response is what is sent by the server to a client in a response to an HTTP request. These responses contain the status code as well as some message body. If the client is a browser, the HTML is generally the HTML page is a generally in message body, and the browser can render it. This is an abstract view, and this is some core technical
व्यू। ये होता क्या है कि जब आप एक वेब एप्लीकेशन एक वेबसाइट में एंटर करने के बाद जब आप एक वेब एड्रेस टाइप करते हैं अपने यूआरएल में, तो होता क्या है? तो यहाँ पे 3 हमारे जो कहना चाहिए रोल्स हैं। हम जब रिक्वेस्ट जनरेट कर रहे हैं, एक्चुअली में रिक्वेस्ट जो हम जिसको क्लाइंट बोलते हैं, वो क्लाइंट से मतलब है मेरा आपके ब्राउजर से। ओके, तो ब्राउजर जो है वो रिक्वेस्ट जनरेट कर रहा है, ठीक है। तो इस लेयर पे आप देखेंगे इस लेयर पे क्लाइंट जो है वो रिक्वेस्ट जनरेट कर रहा है विद द हेल्प ऑफ वेब ब्राउजर। आपने लिखा www.abc.com, एंटर करने के बाद जो आपकी रिक्वेस्ट है वो आपके आईएसपी के पास जाती है। ओके, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कुछ भी हो सकता है, आपका जियो हो सकता है, आपका एयरटेल हो सकता है, बीएसएनएल हो सकता है, और कोई भी जो आप सर्विस प्रोवाइडर यूज कर रहे हैं वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर पे डीएनएस होता है। Sir, sorry to interrupt. There is a request. Kindly start the PPT in presentation mode. Some fonts are not visible to us. ओके 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 सर, ओके। And participants are requested to mute their mics. Whenever they have questions, just raise the hand so we will unmute them. अभी अभी क्लियर है सभी को? Now it is visible. ठीक, Now it is visible. ओके ओके ओके, थैंक यू सर। तो the ISP has a DNS, domain name server, and domain name server is a work as a binding between the IP address and domain name. Okay, तो आप जो रिक्वेस्ट जनरेट कर रहे हैं, आपने जो भी वेबसाइट का नाम लिखा, वो वेबसाइट जो है डोमेन आईएसपी के थ्रू डोमेन नेम सर्वर पे जाके उस पे आईपी, जो भी आईपी उस डोमेन नेम के साथ बाइंड हुआ है उस पर रिक्वेस्ट होता है, और उस आईपी पे होता है आपका एक सर्वर। अच्छा, जब हम सर्वर शब्द की बात करते हैं तो दो चीजें हिट होती हैं। क्या ये हार्डवेयर है और क्या ये सॉफ्टवेयर है? ओके, तो पावरफुल मशीन है जो सारी रिक्वेस्ट को एक्सेस कर पा रहा है, लेकिन वो सिर्फ अगर उसमें सर्वर प्रोग्राम नहीं डला है तो उस पावर का कोई यूज नहीं। ओके, तो अगर हम सर्वर शब्द बोल रहे हैं तो मेरा मतलब है यहाँ पे वेब सर्वर से, मैं हार्डवेयर सर्वर्स की अभी बात नहीं कर रहा हूं। ओके, तो एप्लीकेशन जो है, आपकी रिक्वेस्ट जो आई, वो रिक्वेस्ट आई आपके वेब सर्वर के पास। वेब सर्वर से के अंदर ही होता है आपका एप्लीकेशन सर्वर, और ये एप्लीकेशन सर्वर जो होता है, यहां पे आपकी स्क्रिप्ट होती है जिसपे आप कोड लिखते हैं, है ना। यहाँ पे आपका PHP हो सकता है, यहाँ पे आपका JSP हो सकता है, जावा बेस्ड सर्वर हो सकते हैं, पाइथन बेस्ड हो सकते हैं, रूबी हो सकता है, कोई भी लैंग्वेज। हर लैंग्वेज का एक इंटरप्रेटर और कंपाइलर होता है जो उस सर्वर पे इंस्टॉल्ड है, तो वो आपका एप्लीकेशन सर्वर है। अब डेटा स्टोर करने के लिए आपके पास एक DB सर्वर है। तो ये जो रिक्वेस्ट जो अपन ने इसके पहले डायग्राम में देखा था कि यहाँ से रिक्वेस्ट आया, क्लाइंट के पास आया, क्लाइंट ने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर पे गया, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से वेब एप्लीकेशन सर्वर पे गया। तो इसके पीछे जो टेक्निकल टर्म है वो ये है कि सिर्फ नाम लिखने से, और एक्चुअली मैं आपसे ये एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि कैसे जब आप एक वेब एड्रेस पे एक नाम लिख के एक हिट एंटर की बटन दबा हिट करते हैं एंटर को, तो हिट करने से लेके आपके पेज, आपके मॉनिटर पे जो डिस्प्ले होता है, उसके पीछे इतनी सारी सर्विसेज काम करती हैं। ठीक है, अभी वेब सर्वर जो है, वेब सर्वर ही आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेस करेगा, और वेब सर्वर से ही एप्लीकेशन सर्वर पे डेटा जाएगा, और ऐप सर्वर से डेटा, अगर उसमें कुछ रिक्वेस्ट है, मान लीजिए आपकी कोई रिक्वेस्ट है जो स्टैटिक रिक्वेस्ट है, तो हो सकता है उसमें DB सर्वर का रोल ना हो, तो डायरेक्ट रिस्पॉन्स जो है वो HTTP प्रोटोकॉल की हेल्प से ब्राउजर की स्क्रीन, ब्राउजर पे आ जाएगा। और अगर वहां पे कुछ
PHP कोड है, कुछ बिजनेस लॉजिक लिखा है, तो फिर और हो सकता है उसमें कुछ क्वेरीज की भी बात हो रही है कि आपके डेटाबेस से हमें डेटा उठा के लाना है, तो हो सकता है रिक्वेस्ट आगे जाएगी। ये डिपेंड करेगा आपके लॉजिक पे, एप्लीकेशन आपने किस लेवल पे लॉजिक लिखा है इस पे डिपेंड करेगा। अच्छा, अभी स्क्रिप्टिंग की अगर हम बात करते हैं तो स्क्रिप्ट भी दो टाइप के हैं। एक स्क्रिप्ट जो रन होगा आपके ऐप सर्वर पे, ठीक है, एक स्क्रिप्ट जो रन होगा आपके ब्राउजर पे। तो जो स्क्रिप्ट रन हो रहा है आपके ऐप सर्वर पे वो है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग, और जो स्क्रिप्ट रन हो रहा है आपके क्लाइंट मशीन पे वो है आपकी क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग। तो एक डेवलपर जब एक वेबसाइट डिजाइन करता है तो उसको सारे एस्पेक्ट सोचने पड़ते हैं। वही अगर बहुत छोटी कंपनी है तो अगर टीम छोटी है तो एप्लीकेशन स्क्रिप्टिंग वाला जो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग वाला डेवलपर है उसको ही क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग का कोड लिखना पड़ रहा है, और टीम बड़ी है तो एक अलग टीम है जो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग को डील कर रही है। लेकिन बहुत सारे पैरामीटर्स जो हैं वो साथ में काम कर रहे हैं, और ये चीजें उन लोगों को रोक देती हैं जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से जुड़े हुए नहीं है, जो प्रोग्रामिंग को नहीं जानते। तो इन सभी चीजों को क्या हम अगर ये नहीं समझेंगे तो क्या हम वेबसाइट नहीं बना सकते? ऐसा नहीं है। ये डायग्राम बताने का और ये स्लाइड बताने का यही मेरा रीजन था कि आप पहले उस कॉम्प्लिकेशन को समझें कि कैसे एक वेब एप्लीकेशन, एक पेज, जब आप एक एंटर की बटन दबाते हैं एक एड्रेस टाइप करने के बाद, तो क्या प्रोसेस बैक एंड में होती है, कितनी सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। और यहाँ पे जो सारा इन पूरे ये जो अपन एरोज देख रहे हैं, इन एरोज में ये जो एरो है, ये जो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स है, एक्चुअली में यहाँ पे काम करता है आपका HTTP प्रोटोकॉल जो अपन ने पहले देखा। ये सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं, लेकिन इसके बाद भी अगर हम अगर इन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस को नहीं भी जानते हैं तो भी हम एक वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं, वो हम आज सीखेंगे। तो जो मेन मोटिव है इस HTTP का वो है कि कैसे हम वर्डप्रेस को यूज करें और कैसे हम सारे एक एप्लीकेशन बना पाए, एक कैसे वेबसाइट बना सकते हैं विदाउट एनी कोडिंग नॉलेज। सो वर्डप्रेस एक्चुअली में इट इज अ CMS, और CMS means content management system. It is a content management system allows you to edit and alter the appearance of your website without having the use of code. आपको कोडिंग से बिल्कुल भी इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है कि अगर मुझसे कोडिंग नहीं आता तो क्या मैं वेबसाइट नहीं बना सकता। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है, आप बिल्कुल बना सकते हैं, इसमें आपको कोई रोक नहीं कर सकता। तो WordPress basically built on the PHP and MySQL, or it is a GPL, means it is a open source. First जो WordPress था first appeared in 2003. The latest version of the WordPress is 5.4.2, which is released in 10th June 2020. So question आता, what is CMS? WordPress is a CMS. A CMS is an application with the ability to create, modify and publish digital content. In most cases, it also supports multiple users, allowing them to work in a collaboration. बहुत सारे CMS हैं हमारे पास, ओके हमारे पास Joomla है, WordPress है, Drupal है, बहुत सारे CMS हैं, पर इसमें सबसे ज्यादा पॉपुलर जो है WordPress है। For example, in WordPress, it is possible to create several administrative users, each one having different privileges. CMS also includes text and formatting features, the ability to upload videos, photos, audios, maps, or even your own code. There are two components of CMS. First, it's CMA, second one is CDA.
ओके, तो CMS के अंदर ही दो पार्ट हैं, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, content management application, and content delivery application. CMA can be referred to as a graphical user interface that lets a user create, modify, remove, and publish the content without even needing to have knowledge of HTML or any programming languages. ये बिल्कुल वैसा ही होता है CMS, जैसे आप MS वर्ड में जो माइक्रोसॉफ्ट टूल होता है उसमें आप लेटर टाइप करते हैं और उसमें फॉर्मेटिंग करते हैं, उसमें बगैर किसी स्क्रिप्टिंग नॉलेज के आप उसमें डायग्राम ऐड कर देते हैं, आप कलर चेंज कर देते हैं। ऐसा ही अब जो वेब एप्लीकेशंस है वो ऐसी ही बन चुकी हैं, उनके लिए सिस्टम्स बन चुके हैं। तो सेकंड पार्ट होता है CDA, इट इज अ कंटेंट डिलीवरी एप्लीकेशन। द CDA is responsible for the back-end services. Back-end services means the database services that manage and deliver the content after it in the CMA. The three most popular content management systems in the world are WordPress, Joomla and Drupal. इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं लेकिन ये बहुत पॉपुलर है। Why WordPress? स्क्रीन विजिबल है सभी को मेरा? Yes sir, it is visible. Yes sir, visible है। So why WordPress is the best platform to build your business or start a website? WordPress is free. It is a free of cost. It is easy to use. It has a themes and page builders, and you don't need to touch any code. Actually में starting level पे हमें किसी भी कोड को टच करने की जरूरत नहीं है। जितना भी हमारे पास थीम और प्लगइन है उसमें एक बहुत अच्छा एक सॉल्यूशन आप डिजाइन कर सकते हैं। लेकिन इस फर्दर अगर हमें उसकी फंक्शनैलिटी को इम्प्रूव करना है तो आप अपने खुद के कोड्स भी अपलोड कर सकते हैं। ओके, और सबसे बड़ी चीज जो इसकी पॉपुलैरिटी क्या है कि अभी तक पूरे इंटरनेट पे जो टॉप 10 वेबसाइट्स, टॉप 10 मिलियंस वेबसाइट्स हैं, 27.5% जो है वेबसाइट जो है वो वर्डप्रेस बेस्ड है। What ways to use WordPress? WordPress can be used in many different ways, from the simple website to e-commerce, marketplace, and anything in between. Okay, with the help of WordPress, we can create blog, we can create business website, we can start online store, we can build membership website, we can sell online courses, school, college websites, job board, business directories, question answer website, पोर्टफोलियो वेबसाइट्स। हम किसी भी किस्म का वेबसाइट जो है विद द हेल्प ऑफ वर्डप्रेस बना सकते हैं जिसमें कोई कोडिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। व्हाट आर द फीचर ऑफ वर्डप्रेस दैट हैव मेड इट सो पॉपुलर? फर्स्ट इसका फीचर है प्लगइन। द रियल पावर ऑफ वर्डप्रेस कम फ्रॉम द प्लगइन्स व्हिच अलाउज यू टू डू ऑलमोस्ट एनीथिंग यू वांट with your website. There are currently more than 20,000 plus plugins available on the WordPress.org repository. Alone, thousands of paid plugins are also available from the various other sources as well. Plugins allows you to do anything you want, such as a build email list, create e-commerce stores, and many more. If you can think of some cool features to add your WordPress site, then there is a good chance that someone has already created a plugin to do just that. The second best feature is themes. WordPress.org offers thousands of themes in free of cost.
thousands of free themes available for the self-hosted WordPress site. This makes it easy to make your blog or website look professional while still maintaining a fear of originality. The third feature is inbuilt search engine optimization feature. Okay, actually में SEO सिर्फ वेबसाइट बनाने से ही बात नहीं बनती. अगर आपका वेब एप्लीकेशन वेबसाइट बना हुआ है तो उसको पॉपुलर करना बहुत जरूरी है. Sir, I have a question from our end. Yes, That, sir. what is difference between plugins or themes or services? So Sir, plugins can be inbuilt, or so what is the exact meaning of plugins? बेसिकली आप ऐसा समझ सकते हैं, थीम्स हुआ आपका फ्रंट पार्ट. सपोज दैट आपने फेसबुक, आप समझिए जैसे आपने फेसबुक लिखा www.facebook.com, जी. आपने एंटर बटन दबाया तो आपके सामने कुछ कलरफुल डिजाइन आता है. ओके, ऊपर ब्लू कलर है, यहाँ लाइट ब्लू कलर है, तो वो थीम्स है ना. आपकी जो डिजाइन है, जो आपका फ्रंट पेज है, जिसको आप डिजाइन बोलते हो, कि ऊपर आपका हेडर होना चाहिए, साइड बार होना चाहिए, यहाँ पे मीनू बार का कलर होवर में ब्लू होना चाहिए, फॉन्ट किसी किस्म का एक फॉन्ट होना चाहिए, तो ये थीम होता है. एक्चुअली में जो प्लगइन है, प्लगइन जो है वो आपकी फंक्शनैलिटी को बताता है. सपोज दैट आपसे मैंने बोला कि सर मेरे को वेबसाइट पे एक शॉपिंग कार्ट मॉड्यूल चाहिए. मैं चाहता हूं कि लिस्ट दिखे, आइटम की लिस्ट दिखे, आप उसको ओके करें. आप जब उसको ओके करें तो वो मेरे कार्ट में आ जाए. इट इज अ प्लगइन, है ना. मैंने आपसे बोला कि मान लेते हैं आपका एक इंस्टीट्यूट है, आपसे मैंने बोला कि मैं चाहता हूं कि बच्चे का इंक्वायरी फॉर्म हो, वो बिल्ट हो, और इंक्वायरी फॉर्म भरने के बाद डेटा जो है वो मेरे डैशबोर्ड पे स्टोर हो जाए. तो ये प्लगइन है. प्लगइन हमारी फंक्शनैलिटी को बढ़ाता है. थीम जो है डिजाइनिंग वाला पार्ट है. एक्चुअली में जब हम एक वेब एप्लीकेशन डिजाइन करते हैं, या कोई भी डेवलपर या कोई भी स्टूडेंट जब एक वेब एप्लीकेशन बनाता है ना, तो उसको बहुत सारे चीजें देखना पड़ती हैं. एक पार्ट होता है कि वेबसाइट दिखेगी कैसे, उसका लुक एंड फील कैसा आएगा, कैसे वो हम उसको देखेंगे, कैसे हम उसको इमेजिन करेंगे. तो वो पार्ट हो गया थीम. अच्छा, सिर्फ थीम बना लेने से काम नहीं खत्म होगा. अब उसकी फंक्शनैलिटी की भी बात आएगी कि आपकी वेबसाइट क्या ऑफर कर रही है. तो वो होते हैं आपके प्लगइन्स. हाँ सर. Can we have an example of this? Like in our website, we can see the plugins, themes, and search engine optimization kind of thing. Any website like Flipkart, we can take. So you just share the screen and take into this. So that will be हाँ, ये मैं आपको अभी इसके बाद एक पूरा वो डेमो बताऊंगा कि कैसे प्लगइन्स होते हैं और कैसे प्लगइन्स और कैसे थीम्स होते हैं. तो ये पूरी चीज मैं आपको इसके बाद बताता हूँ. सो मैं डिस्कस कर रहा था एसईओ के बारे में, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन. एसईओ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. यही है, देखिए क्या है, सिर्फ वेबसाइट बना के हमको नहीं छोड़ देना है ना. हमको वेबसाइट बनाने के बाद उसको पॉपुलर भी करना है. देखिए एक बहुत सिंपल सा एक मार्केट सर्वे है कि आज के टाइम पे अगर मैं कुछ 93% जो सर्चिंग होती है वो इंटरनेट के थ्रू होती है. किसी भी प्रोडक्ट को परचेस करने से पहले हम उसका पूरा का पूरा एनालिसिस करना चाहते हैं कि वो प्रोडक्ट कितने लोगों के ने उसके लिए रिव्यूज दिए हैं, उसकी पॉपुलैरिटी क्या है. तो ये सब है जो है एसईओ में आता है. तो आपका वेब एप्लीकेशन से बनाने के बाद उसका जो यूआरएल है ना, उसका यूआरएल जो है वो एसईओ फ्रेंडली भी होना चाहिए. तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है एक डेवलपर के लिए कि कैसे मैं यूआरएल जो है एसईओ फ्रेंडली बनाऊं. तो वर्डप्रेस आपके लिए ये भी करके देता है. आपको बहुत सारे इनबिल्ट फीचर्स जो है वो प्रोवाइड कराता है. इसके अलावा इसकी जो प्राइसिंग है मैंने आपको पहले ही बताया कि ओपन सोर्स है और बहुत सिंपल. वर्डप्रेस का रिकॉर्ड है 5 मिनट इंस्टॉलेशन है इसका. सिर्फ 5 मिनट में, अगर आप थोड़ा सा सर्वर का नॉलेज रखते हैं तो आपको 5 से 6 मिनट लगेंगे और आप अपना एक वर्डप्रेस का पूरा साइट जो है वो डिजाइन कर सकते हैं, इसको इंस्टॉल कर सकते हैं. ठीक है.
दूसरी बात, इट इज अ हाईली एक्सटेंसिबल। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कुछ 20,000 से ज्यादा प्लगइन्स जो हैं वो फ्री अवेलेबल हैं, लेकिन इसके अलावा कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि हम अपना कुछ प्लगइन नहीं ढूंढ पा रहे हैं जो हमारे लिए यूज होना है, तो हम अपना थीम और अपना प्लगइन भी डेवलप कर सकते हैं। तो ये फैसिलिटी भी है। एक्चुअली में इसके दो मोड पे अगर आप इसको देखें तो वर्डप्रेस यहाँ ना दो मोड पे काम कर रहा है। एक उनके लिए जो कोड नहीं जानते, एक उनके लिए जो कोड जानते हैं और कुछ अपनी फंक्शनैलिटी ऐड करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी हम काम कर सकते हैं। Sir, there are two hands raised. So shall they unmute and ask their questions? Yeah, they can unmute themselves and ask their query. हाँ, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, बिल्कुल। Amit and Rajneesh, you can ask your questions. यस मैम, गुड इवनिंग मैम। एक क्वेश्चन था मैम। हाँ, पूछे। सर ये जो आपने थीम बताया सर, मतलब कि जितना हमको सामने दिखता है, कलरफुल बॉक्स दिखते हैं, फॉन्ट दिखते हैं, उसमें कलरफुल इमेजेस दिखती हैं, तो सर ये तो सीएसएस की मदद से भी हो सकता है ना सर? ये तो हाँ, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एक्चुअली में थीम जो है वो सीएसएस से ही बनता है। यस सर। एक्चुअली में देखिए क्या है, मैं ये थीम्स आपको बने बनाए मिलेंगे वर्डप्रेस पे सर। बने बनाए आपको थीम्स मिलेंगे, उन थीम्स को आप इंस्टॉल कर सकते हैं। देखिए क्या होता है, थीम्स के पीछे एक लॉजिक होता है। थीम सिर्फ सीएसएस से तो आपने बना लिया, लेकिन कई बार ये होता है कि जो डिजाइनिंग आप देना चाह रहे हैं, सबसे बड़ी बात आज के टाइम पे हो गया है मोबाइल फ्रेंडली आपको यूआई बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप डेवलप कर रहे हैं तो फिर आपको या तो आप कोई फ्रेमवर्क का यूज करें, चाहे बूटस्ट्रैप यूज कर सकते हैं, वाईयूआई यूज कर सकते हैं, किन्हीं भी इसी किस्म के आप मोबाइल फ्रेंडली फ्रेमवर्क का यूज करके बेसिक जीरो से आप थीम बनाएंगे। बेहतर ये है कि हम एक एग्जिस्टिंग थीम लें और उसको मॉडिफाई कर लें, तो हमको बना हुआ एक स्ट्रक्चर जो मिल जाएगा। तो आप वर्डप्रेस में अगर थीम पे जाते हैं तो आपको बहुत सारे थीम, जो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा कि कैसे हमें थीम यूज करते हैं हम और कैसे हम उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, ये अपन सारी चीजें आगे देखेंगे, है ना? और हाँ, और कोई क्वेश्चन? सर इस सेशन में आप सर पूरा मतलब बनाना सिखाएंगे सर हम लोग को सर, मतलब हाँ वेब यार, डिजाइन बिल्कुल से बिल्कुल, इसीलिए वर्डप्रेस सेशन से। है। हाँ हाँ हाँ, ओके, थैंक यू सर। Good evening, sir. हाँ, गुड इवनिंग। So what should I do if our website get hacked? Means any security is provided by WordPress or not? Inbuilt security. Okay. You are asking about inbuilt security, or you want to know some plugins available for the securities? No. Sir, I want some plugins for security, but I am asking inbuilt security. Yeah. See, देखिए क्या है कि हाँ पूछिए। Sir, I know about plugins. Some plugins is available in WordPress, but I am asking about inbuilt security. What inbuilt security WordPress provided? Inbuilt security for what? देखिए बेसिकली when you install WordPress, तो इन डेटाबेस में यहाँ पे हम MD5 को यूज करते हैं, जो वर्डप्रेस होता है, जो यूजर आईडी पास। देखिए बेसिकली जब आप एक वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं, फ्रेश वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं, तो उसमें जो सिक्योरिटी वाला टेबल है जो डेटाबेस का, वो है आपका यूजर टेबल। ओके, तो वहां पे आप वर्डप्रेस में इनबिल्ट जो वर्डप्रेस आपको पासवर्ड होता है वो MD5 पे एनकोड बेस 64 फंक्शन के थ्रू वो एनकोड करके आपको देता है। तो ये तो इनबिल्ट फीचर वो आपको दे रहा है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप इसमें और सिक्योरिटी चाहते हैं तो सबसे पहले हमको नॉर्मल HTTP से HTTPS सर्वर पे जाना पड़ेगा। तो वहां पे आपको 256 बिट AES एन्क्रिप्शन मिल जाएगा। और फिर कुछ प्लगइन्स भी आते हैं जिसमें आप जो बैकलिंक्स होते हैं, जो भी पोस्ट होते हैं, उनको भी आप रिमूव करके इसको और सिक्योर कर सकते हैं। ओके, Yes, Amit Paliwal ji, kindly ask your question by unmute your mic. Amit ji.
Amit, sir. unmute yourself. I think they have some network issues. Sir, please proceed. ओके, हेलो हाँ पूछिए। सर, Yeah, आवाज Amit. आ रही है? सर गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, आई एम अमित पालीवाल। हाँ हाँ. You are सर, audible. जैसे कोई भी स्टैटिक वेबसाइट्स Yeah. होते हैं, जैसे कॉलेज का कोई वेबसाइट्स है, तो हम उसमें बैंकिंग सिस्टम को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं सर? इसका कोई इंफॉर्मेशन दे सकते हैं सर? बैंकिंग सिस्टम का जैसे देखिए, कोई पेमेंट ऐड करना, पेमेंट सिस्टम ऐड करना है कि डायरेक्ट? यस सर। अमित जी आपका अभी जो वेबसाइट है वो किस पे बना हुआ है? सर वर्डप्रेस पर ही है सर। तो आप जो डेटा क्या स्टोर कराना चाह रहे हैं? सर जैसे कोई भी स्टूडेंट है वो डायरेक्ट उस पर पेमेंट कर सके, हम उसका आप अपना उसका फीस स्टोर कराना चाहे, फीस ये सब फीस स्टोर के वो हाँ, डायरेक्ट फीस पेड हो जाए। वेबसाइट्स के थ्रू हाँ तो अमित जी आप उसमें कुछ पेमेंट गेटवे इंस्टॉल कर सकते हैं। बहुत सारे पेमेंट गेटवे Okay. अवेलेबल है हमारे पास। जी आप जी रोजर पे का यूज कर सकते हैं, जो काफी समय तक आपको काफी सर्विसेज फ्री देता है। और थोड़ा एडवांस में Okay. जाना चाहते हैं, आप बिल डेस्क का यूज कर सकते हैं, सीसी एवेन्यू का यूज कर सकते हैं। तो आप जी। पेमेंट गेटवे का एपी प्लगइन इंस्टॉल करिए, अपना ऑथेंटिकेट कराइए अपने। अच्छा, उसके लिए आपको सर्वर एचटीटीपीएस चाहिए अमित जी। सर उसका कोई अलग से कॉस्ट लगता है क्या? देखिए, जब आप पेमेंट करेंगे तब वो कॉस्ट लेगा। एपीआई तो फ्री है। अच्छा, ओके ओके एपीआई आपको फ्री पड़ेगा, है जी ना, आपने एपीआई डाउनलोड कर जी लिया। लेकिन जब आप पेमेंट जी कराएंगे किसी से, आपने बोला कि मैं ओके भीम यूपीआई इंटीग्रेट करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ क्रेडिट कार्ड से पेमेंट हो, मैं चाहता हूँ इंटरनेट बैंकिंग से पेमेंट हो, तो उसके जी अलग अलग जो उनके पेमेंट गेटवेज के अलग अलग चार्जेस हैं। वो आपने भी देखे होंगे, जब ओके आप बिल डेस्क से कुछ पेमेंट करते हैं जी 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 तो जी आपका 10 रुपए कुछ एक्स्ट्रा ये लगता है जब आप ये सर इंटरनेट 10 रुपए, जैसे कोई रेलवे पेमेंट, रेलवे का कोई पेमेंट होता तो है वो तो वो सर 10 रुपए एक्स्ट्रा वही उनके चार्जेस लेते हैं। चार्जेस हैं। यस यस लेकिन अगर आप यस सर सीसी एवेन्यू लेते हैं, जी जी सीसी एवेन्यू बहुत पॉपुलर है और काफी यस सिक्योर सर प्रोवाइड कराता है वो ये ओके अपना, कहना चाहिए पेमेंट, उसके हाँ पेमेंट चार्जेस थोड़ा सिक्योर अलग होता है। ओके और अभी तो बैंक ने ये भी फैसिलिटी दे दी है कि आप अपने साइट पे डायरेक्ट एपी यूपीआई को इंटीग्रेट कर सकते हैं। आप जी कोड स्कैन करके उसको पेमेंट करा सकते हैं। वो बहुत बढ़िया है, जिसमें कोई भी वॉलेट से आप पेमेंट कटा सकते हैं। कुछ एंट्री नहीं ओके करना, कुछ नहीं करना, जैसे एलआईसी हाँ अभी कर रहा है। ओके ओके वो भीम यूपीआई से कर रहा है, हाँ, मैंने भीम आज ही यूपीआई के देखा है, थ्रू भीम आप उसमें, यूपीआई को हाँ यूज कर रहा है एलआईसी। हाँ ओके आप यस उसके यस थ्रू भी ये काम कर सकते हैं। ओके ओके सर, थैंक यू हाँ, फॉर जी इंफॉर्मेशन। जी ओके थैंक यू। सो सम पॉपुलर वेबसाइट बेस्ड ऑन द वर्डप्रेस आर, जैसे कि है आपका पीएम इंडिया का वेबसाइट जो है वो भी वर्डप्रेस का यूज कर रहा है। फेसबुक न्यूज रूम, माइक्रोसॉफ्ट न्यूज सेंटर्स, इंडियन एक्सप्रेस और बहुत सारे जो आपके क्लाइंट्स हैं वो वर्डप्रेस को यूज कर रहे हैं। तो ये बहुत पॉपुलर फ्रेमवर्क हो चुका है अब, जो इनको यूज किया जा रहा है इतनी जगहों पे। बेसिकली दिस इज अ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ वर्डप्रेस साइट। तो जब हम वर्डप्रेस पे डील करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ये 5 किस्म के टूल्स से हमको डील करना पड़ता है। ठीक है, हमारे पास PHP होना चाहिए इंस्टॉल्ड हमारे सर्वर पे, हमारे पास MySQL इंस्टॉल होना चाहिए, और आपका जो HTML जावास्क्रिप्ट है और जो CSS है, जावास्क्रिप्ट वाला जो पार्ट है वो आपके क्लाइंट के प्रोग्राम पे होगा, ब्राउजर पे। तो जब हम वर्डप्रेस की बात करते हैं तो हमको एक सर्वर चाहिए। सर्वर के अंदर हमारे पास PHP का इंटरप्रेटर इंस्टॉल्ड होना चाहिए, MySQL इंस्टॉल्ड होना चाहिए, है ना। इनकी हेल्प से हम एक सर्वर एनवायरनमेंट सेटअप करते हैं। और जैसे कोई भी सर्वर, आप किसी भी सर्वर की आप बात कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको जो आज डेमो जो अपना हैंड्स ऑन चालू होगा अभी, उसमें मैं आपको लोकल मशीन पे इंस्टॉल करना बताऊंगा, कैसे हमें वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, तो उसके लिए कैसे हमको सर्वर सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो हमको बेसिकली PHP चाहिए, MySQL चाहिए, HTML चाहिए, CSS चाहिए, जावास्क्रिप्ट चाहिए। इन पांचों चीजों से हमारा जो, हाँ अमित जी बोलिए सर। अमित पालीवाल जी बोलिए, कोई क्वेश्चन है आपका? ओके ओके हेलो, हाँ हाँ आवाज आ रही है सर? हाँ अमित जी बोलिए। सर जैसे अभी आपने बोला कि हम आपको इंस्टॉल करना बताएंगे, तो सर सिंपल विंडोज 7 पर इंस्टॉल कर सकते हैं सर, बिल्कुल 32 बिल्कुल। बिट पर? मैंने एक मैडम 32 को बिट कल
एक डॉक्यूमेंट सेंड किया था ताकि आप सर्वर इंस्टॉल कर लें, और मैं आपको नॉर्मल जी विंडोज जी 7 में इंस्टॉल करना बताऊंगा कैसे हमें वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है। और उसके बाद ये हो गया आपका होस्टिंग जो होगी हमें जो होगी इन हाउस हो जाएगी, है ना। जी और जी अगर आप जी सर्वर पे करना चाहते हैं तो बहुत सारे सर्वर प्रोवाइडर्स हैं, आप GoDaddy और ब्लू होस्ट किसी से भी ले सकते हैं। तो अगर उसमें कोई डाउट होगा तो उसको भी अपन डिस्कस कर लेंगे, है ना। ओके 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 सर, थैंक यू सर। ओके, तो एनवायरनमेंट सेटअप करने के लिए मैंने एक सॉफ्टवेयर लिंक शेयर किया था, हम यूज करेंगे XAMPP पैनल का, ठीक है। एक्चुअली में हमें चाहिए एक वेब सर्वर, जो अगर हम सेकंड थर्ड स्लाइड में मैंने आपको एक सर्वर का डायग्राम बताया था जिसमें नेटवर्क अटैच सर्वर था। तो मेरे को इस वर्डप्रेस को रन करने के लिए जो सर्वर चाहिए वो एक अपाचे सर्वर चाहिए। एक्चुअली में अपाचे सर्वर कंपैटिबल है PHP। देखिए वर्डप्रेस एक्चुअली में एक एप्लीकेशन है जो PHP और MySQL पे बना हुआ है, ठीक है। तो अभी हम सिर्फ बात करेंगे PHP और MySQL की, हमें वर्डप्रेस को रन करने के लिए क्या क्या चाहिए। वर्डप्रेस को रन करने के लिए हमको चाहिए एक सर्वर, एक वेब सर्वर, वो है अपाचे, PHP इंटरप्रेटर, और डेटाबेस सर्वर में चाहिए MySQL। अब आप इसको इंस्टॉल करने के दो तरीके। सबसे पहला तरीका है कि आप इंडिविजुअल apache.org पे जाके अपाचे सर्वर को डाउनलोड करें, php.net पे जाके PHP सर्वर को डाउनलोड करें, mysql.com से जाके MySQL सर्वर डेटाबेस सर्वर को डाउनलोड करें और उनको अलग अलग इंस्टॉल करें। और दूसरा सबसे अच्छा तरीका, सबसे पॉपुलर तरीका है कि हम सिंगल विंडो इंस्टॉलेशन का यूज करें, वो है XAMPP, ठीक है, XAMPP। इसको कई जगह WAMP से भी बोला जाता है कि हमने वैम सर्वर इंस्टॉल किया, तो वहां पे W का मतलब होता है आपका विंडोज। कई बार लैम्प भी बोला जाता है, LAMP, तो वहां पे L का मतलब होता है लिनक्स। ये है XAMPP, ठीक है। XAMPP जो है इसमें X है क्रॉस प्लेटफॉर्म। ये क्रॉस प्लेटफॉर्म एक एनवायरनमेंट आपकी सिस्टम पे इंस्टॉल हो, जैसे आप इस मशीन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे तो एक्चुअली में आपकी मशीन पे वेब सर्वर इंस्टॉल हो जाएगा, आपकी मशीन पे PHP इंटरप्रेटर इंस्टॉल हो जाएगा, और आपकी मशीन पे MySQL सर्वर इंस्टॉल हो जाएगा। ये तीनों चीजें एक साथ इंस्टॉल हो जाएंगी। और MySQL को एक्सेस करने के लिए जो कंट्रोल स्क्रिप्ट है वो भी इंस्टॉल्ड हो जाएगी, जिसको हम PHP MyAdmin भी कहते हैं। ओके, तो XAMPP क्या है? Actually, XAMPP is an abbreviation of the cross-platform Apache, MySQL, PHP, and Perl. Okay, cross-platform means that you can use it on the Windows, Mac, or Linux. A जो है वो Apache है, M जो है वो MySQL है, P जो है वो PHP है, और लास्ट में जो P है वो Perl है। तो हमें Perl का यूज नहीं है, पर फिर भी जब हम XAMPP इंस्टॉल करेंगे तो ये चारों चीजें हमारी मशीन पे इंस्टॉल हो जाएंगी, ठीक है। Apache क्या है? जो अभी मैं इतनी देर से शुरू में आपसे मैंने बात की थी कि हमें HTTP रिक्वेस्ट चाहिए, एक वेब एप्लीकेशन को रन करने के लिए रिक्वेस्ट आती है, एक रिस्पांस होता है, तो ये हमारी रिक्वेस्ट और रिस्पांस को हैंडल करता है अपाचे सर्वर, ठीक है। देखिए इसमें आपके ऊपर चॉइस है, आप अपाचे चाहें तो अपाचे यूज कर सकते हैं, आप IIS सर्वर चाहें जो विंडोज बेस्ड सर्वर है आप उसको यूज कर सकते हैं। हमें एक सिंपल वेब सर्वर चाहिए, क्योंकि हम पूरा का पूरा सेशन जो है वो ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी को ध्यान में रख के बनाया गया है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे आपको सारी ओपन सोर्स चीजें बता रहा हूँ, जिसके लिए आपको कुछ कहीं से पे नहीं करना। तो अपाचे इज एन ओपन सोर्स एंड फ्री वेब सर्वर सॉफ्टवेयर दैट पावर्स अराउंड 40% ऑफ वेबसाइट अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। ये वेब सर्वर है। देखिए शुरू में जब मैंने आपसे बात की थी तो मैंने एक टर्म बोला था कि सर्वर कैन बी हार्डवेयर, सर्वर कैन बी सॉफ्टवेयर, तो ये वेब सर्वर सॉफ्टवेयर है जो आपकी मशीन पे रन होगा, ओके। The official name of Apache is Apache HTTP Server. It's maintained and developed by the Apache Software Foundation. It is one of the oldest and most reliable web server, with the first version released more than 20 years ago in 1995. It is not a physical server, but rather a software that run on a server. ठीक है, तो सर्वर मशीन। अच्छा एक चीज और, इसमें बिल्कुल आप कंफ्यूज मत होइएगा कि हमको अपाचे सर्वर रन करने के लिए अभी एक हार्डवेयर, बहुत हैवी हार्डवेयर चाहिए, ऐसा नहीं है। टेस्टिंग पर्पस के लिए अगर आपके पास सिंपल i3 मशीन भी है तो भी इस अपाचे सर्वर से हम 30 क्लाइंट्स को सर्विस प्रोवाइड करा सकते हैं बगैर किसी हैडल के, है ना। तो नॉर्मल मशीन पे हम इसको इंस्टॉल करके सर्वर बना सकते हैं। तो इसमें आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा कि अगर हमें अपाचे सर्वर रन करना है तो हमें एक हैवी मशीन चाहिए, ऐसा नहीं है।
Those who have doubts can unmute themselves and ask their doubts. हाँ, जिसको कोई डाउट है आप बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि देखिए क्या है, ये इंटरेक्टिव सेशन है, हमको सीखना है, तो आप थोड़ा डाउट क्लियर करें, जो भी डाउट होगा अपन डिस्कस करेंगे. Rajneesh, you can ask your doubt. हाँ, पूछिए. Good evening, sir. हाँ, गुड इवनिंग. This is Nancy. हाँ, नैन्सी. Sir, what is exactly the purpose of Apache? सर ये XAMPP जो है सर, ये लोकल सर्वर है सर ये. हाँ, नैन्सी, Sir, क्या? what is What is the the exact purpose of? work of Apache? Nancy, Nancy. we are not getting your voice clearly. So kindly check your internet. Nancy, Put your question on the chat box. अपाचे. Apache. हाँ, मैं आपको बताता हूँ कि पर्पस और अपाचे क्या है. देखिए ये देखिए क्या होता है. एक मिनट, इस डाउट को यहां से क्लियर करते हैं. नैन्सी, आप ये पार्ट देख रहे हैं, ये नैन्सी, ये जो Yes, sir. नेटवर्क कनेक्टेड कंप्यूटर्स की जो मैं बात कर रहा था, कि जो आपकी, जब आपने एक वेबसाइट का एड्रेस टाइप किया, आपने लिखा www.facebook.com, तो ये रिक्वेस्ट जाएगी कहां? ये कहीं ना कहीं एक ऐसे मशीन पे जाएगी जो facebook.com के आईपी से बाइंड होगा. ठीक है, तो ये जो सर्वर है, ये सर्वर उस रिक्वेस्ट को लेगा, वो समझेगा कि मुझे इस रिक्वेस्ट पे क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है. तो अपाचे एक्चुअली में मेन हमारा जो भाई वर्डप्रेस ठीक है, हमें रन करना है, लेकिन रन करने के लिए जो एनवायरनमेंट है वो आपका अपाचे सर्वर है. सिर्फ अपाचे नहीं, अपाचे मैं आपको बता रहा हूं, इसके अलावा आपके पास एनजिंक्स होता है, इसके अलावा आपके पास IIS सर्वर भी होता है. हमको एक सिंपल वेब सर्वर चाहिए, तो अपाचे एक प्रकार का वेब सर्वर है. ठीक है, और जो यूज होगा हमारी रिक्वेस्ट को, जो क्लाइंट की रिक्वेस्ट हैं उनको एक्सेस करने के लिए, उनको फुलफिल करने के लिए. कहां पे आके वो रिक्वेस्ट आएंगी, कैसे आपका मशीन समझेगा कि आपको चाहिए क्या है, तो वो रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए मेरे को एक सर्वर चाहिए, वो सर्वर अपाचे है. अभी क्लियर हुआ आपको नैन्सी? Yes, sir. Thank you, sir. थैंक यू. सर एक क्वेश्चन था सर. हाँ, पूछिए. सर ये जो XAMPP जो है सर, ये मतलब लोकल सर्वर है कि सर पूरा मतलब पब्लिक वाला है? देखिए बेसिकली, देखिए क्या होता है, ये एक लोकल एनवायरनमेंट आपके लैन पे क्रिएट कर देगा. ठीक है, अगर आपके पास लैन नहीं है, तो नॉर्मल मशीन की अगर हम बात करते हैं, तो आपकी मशीन पे जब आप ZAMP सर्वर इंस्टॉल करेंगे, ZAMP सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे, तो आपकी मशीन पे एक सर्वर भी इंस्टॉल्ड हो जाएगा. ठीक है, लेकिन जब आप पब्लिक आईपी पे जाते हैं, तो वहां पे फिर ZAMP यूज नहीं होता. वहां प्रोवाइडर ने आपको, जैसे मान लेते हैं GoDaddy आपको जो सर्वर दे रहा है, सर उसके लिए फिर पेड करना पड़ेगा अगर हम उसके लिए जाते हैं पब्लिक. देखिए होस्टिंग जो है, वर्डप्रेस टूल फ्री है, लेकिन होस्टिंग प्रोवाइडर आपसे चार्ज लेगा. भाई वो अपना रेंट निकालेगा ना, आपको डोमेन नेम परचेज करना पड़ेगा, और डोमेन नेम के साथ आपको एक सर्वर परचेज करना पड़ेगा. तो वो बहुत ही मिनिमम चार्जेस हैं. मेरे ख्याल से 3,000 रुपए ईयरली में आपको लीज पे एक सर्वर मिल जाएगा, और 600-500 रुपए में आपको एक डोमेन मिल जाएगा. ऐसे करके 3,500 में आपकी एक वेबसाइट तैयार हो जाती है ईयरली पे. तो ये जो ZAMP है, ये ZAMP हमारी लोकल मशीन पे एक सर्वर एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा. ठीक है, अब आप चाहें तो लैन पे अगर आपको इंस्टॉल करना है, तो आप लैन पे इसको इंस्टॉल कर दीजिए, तो ये उस लैन के लिए एक सर्वर की तरह काम करेगा. और कोई डाउट? सर सॉल्यूशन प्रोसेस बता दीजिए सर इसकी. हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ. ठीक है, the job of a web server is to serve websites on the internet. To achieve that goal, it acts as a middleman between the server and the client machines.
इट पुल्स कंटेंट फ्रॉम द सर्वर ऑन द ईच। यहाँ पे जो सर्वर टर्म हो रहा है ये एप्लीकेशन सर्वर की बात हो रही है। ईच यूजर रिक्वेस्ट एंड डिलीवर इट टू द वेब। इट इज अ टूल रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉपर सर्वर क्लाइंट कम्युनिकेशन। जो भी हमारी HTTP रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स की जितनी भी टर्म होंगी वो सारी की सारी चीजें अपाचे वेब सर्वर हैंडल करेगा। सेकंड पार्ट है आपका PHP। PHP जो है ये वो लैंग्वेज है जिसके ऊपर आपका वर्डप्रेस जो है वो बनाया गया है, ठीक है। इट इज अ वाइडली यूज्ड ओपन सोर्स सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। अब यहाँ पे एक टर्म आती है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। देखिए अब आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग और क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग क्या है। तो इसमें बहुत छोटा सा डिफरेंस है। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग जो है वो सर्वर पे स्टोर होती है, सर्वर पे एग्जीक्यूट होती हैं और अपने आउटपुट को क्लाइंट की मशीन पे भेजती हैं, ठीक है। जो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग होती है जैसे कि जावा स्क्रिप्ट, जैसे कि VB स्क्रिप्ट, ये सारे स्टोर तो सर्वर पे होते हैं, लेकिन जब आप इसकी रिक्वेस्ट करते हो तो ये पूरा का पूरा कोड उठ के आता है क्लाइंट की मशीन पे और एग्जीक्यूट होता है आपकी सिस्टम पे। इसीलिए जो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग होती है वो डिपेंड होती है क्लाइंट मशीन पे। अगर आपने अपने ब्राउजर पे जावा स्क्रिप्ट को डिसेबल करके रखा है तो क्लाइंट जो सर्वर है उसकी जो स्क्रिप्ट है, अगर उस स्क्रिप्ट में क्लाइंट साइड का कोड लिखा है, मतलब उसमें अगर जावा स्क्रिप्ट का कोड लिखा है तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेकिन सर्वर में ऐसा नहीं होता, अगर सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग में ऐसा नहीं होता। जब आप रिक्वेस्ट करते हैं तो आपको आउटपुट दिखता है, क्योंकि वो कोड उठ के आता है पूरा का पूरा एग्जीक्यूटेड कोड। एक्चुअली में आउटपुट जो होता है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में, आउटपुट जो है वो आता है ब्राउजर से क्लाइंट की मशीन पे, और जो आपका क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग होती है वो पूरा का पूरा कोड उठ के आता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, ठीक है। तो जावा स्क्रिप्ट वाला जो पार्ट है वो पूरा का पूरा कोड के साथ HTML बॉडी में आ जाएगा और एग्जीक्यूट होगा क्लाइंट की मशीन पे, और PHP वाला जो पार्ट है वो एग्जीक्यूटेड होके आउटपुट के साथ आपको आएगा, ठीक। MySQL यूज होता है सारे के सारे डेटा को स्टोर करने के लिए, ठीक है। तो MySQL इज एन ओपन सोर्स रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर। इट इज बेस्ड ऑन द क्लाइंट सर्वर मॉडल. It has a features like creating the database, searching database, modifying the database, managing database, and so on. The MySQL server can have multiple databases, and each database can have the multiple tables. अब WordPress.com या WordPress.org, यहाँ पे दो प्लेयर हैं. There are two players in IT, in internet technology. एक है WordPress.com, एक है WordPress.org. WordPress.com and WordPress.org are two ways of hosting the WordPress site. Hosting का मतलब होता है कि आप अपनी वेबसाइट को कहां रखना चाह रहे हैं, ठीक है. वो टर्म होती है होस्टिंग, ठीक है. और इनमें जो डिफरेंस है वो डिफरेंस WordPress.com और WordPress.org में ही से ही चालू होता है. The thing that varies with these two methods is the actual is hosting. By using the WordPress.org, अगर आप WordPress.org का यूज करते हैं, you may download the script free of charges and host it yourself on the local machine or with the hosting provider such as a GoDaddy.com, Bluehost, Google Cloud deployment और Amazon Web Services. आप किसी जगह पे भी अपने इस कोड को इंस्टॉल कर सकते हैं. और दूसरा पार्ट होता है WordPress.com. अब आप फिर भी एक वेबसाइट चाहते हैं लेकिन आप होस्टिंग नहीं करना चाहते, तो आप WordPress.com का यूज कर सकते हैं. आपका जो WordPress का इंस्टॉलेशन है वो .com पे इंस्टॉल हो जाएगा. लेकिन WordPress.com take care of all that by hosting the site for you. You don't have to manage the web server, pay for hosting or download the software however ads are shown in your website. आपको कुछ नहीं सोचना अगर आप WordPress.com का यूज करते हैं. लेकिन इस सिचुएशन पे आपका जो URL है ना वो आपका नहीं रहता. एक्चुअली में उसमें डोमेन आपका नहीं रहता. If you are not interested in having your own hosting or managing a web server, then WordPress.com may be the way to go. It is free and can be quickly set up.
you will also have the various features and options in your sites and customizations. आप इजीली जा सकते हैं, wordpress.com ओपन करेंगे, एक यूआरएल, एक वैलिड जीमेल वैलिड आईडी से आप उसमें अकाउंट क्रिएट करिए और आपकी वेबसाइट तैयार हो जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन इस सिचुएशन में आपका जो यूआरएल है वो wordpress.com के साथ रहेगा। और बहुत सारे प्रॉब्लम्स इसमें ये आते हैं कि आप बहुत से प्लगइन्स को इंस्टॉल नहीं कर सकते। It comes with the downside. Your website will include wordpress.com in the URL. wordpress.com as a keyword आपकी वेबसाइट पे चलता रहेगा। आपने बहुत सारे वेब ब्लॉग्स देखे होंगे जिसमें wordpress.com लिखा रहता है URL पे, okay? And you will not be able to upload the custom themes and plugins also. The ability to edit or modify PHP code behind your site will also be not possible. अगर आप wordpress.com का यूज करते हैं तो आप किसी भी किस्म का कस्टमाइजेशन नहीं कर पाएंगे। सेकंड पार्ट आता है wordpress.org। अगर आप org का यूज करते हैं, हम org का यूज करेंगे, हम .com का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। Using the self-hosted version of the wordpress.org provides more flexibility and control over your site. You will be able to use your own domain name, upload the themes, plugins, and install them. You will also have access to your WordPress files, database, and codes, meaning that you will be able to modify according to your need. The most popular and powerful WordPress sites are self-hosted, as it provides greater flexibility and ability to implement custom functionality, code, and designs. WordPress.org आपको कोड देता है, wordpress.com आपको कोड विथ होस्टिंग देता है, लेकिन कोड को आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। लेकिन wordpress.org से जब हम कोड डाउनलोड करेंगे तो हमारे पास एक फ्रेश क्लीन कोड है। अब उस कोड को हम कहीं भी इंस्टॉल कर दें और कोड को इंस्टॉल करने के बाद हम उसको कैसे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब अपन इंस्टॉलेशन स्टार्ट करते हैं सीधे। मैं अभी स्लाइड्स पे, आप सभी के पास, सभी ने XAMPP सर्वर इंस्टॉल कर लिया है? क्या सभी की मशीन पे, मैंने एक लिंक शेयर किया था कल, तो वो सभी XAMPP एनवायरनमेंट है आपकी मशीन पे? Students, we have sent you a link yesterday. Have you all installed XAMPP server? Ma'am, Yes, we sir. didn't got the link. Okay. Okay, those who haven't installed it till now, you can install. मैं आपको URL शेयर कर देता हूं एक बार फिर से, ओके। सर हम चैट बॉक्स पे लिंक डाल सकते हैं इसका। हाँ, वहीं कर देता हूँ। मैंने एक URL शेयर किया अभी आपको, apachefriends.org। मैंने एक चैट बॉक्स पे एक URL शेयर किया है। इस URL पे आप जाएंगे तो आपको देखिए, मैं स्क्रीन शेयर करके आपको बता देता हूं। अभी मेरा स्क्रीन क्लियर है, विजुअल है सभी को? यस सर। हाँ, ठीक है। तो आप URL पे टाइप करिए, जो URL मैंने आपको चैट बॉक्स पे दिया, आप उसको कॉपी कर लीजिए। आपके सामने एक ऐसा एक अपाचे फ्रेंड्स का एक सॉफ्टवेयर
लिंक खुलेगा। ठीक है, अब यहां पे नीचे डाउनलोड सेक्शन पे जाके अगर आप विंडोज यूज कर रहे हैं तो आप XAMPP फॉर विंडोज इंस्टॉल कर लीजिए, और अगर आप लिनक्स यूज कर रहे हैं तो आप यहां पे क्लिक करके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है, इसको आप डाउनलोड पे लगा दीजिए। जब तक अपन आगे का और देखते हैं और कैसे इसको यूज करना है वो मैं आपको बताता हूं। अच्छा, एक चीज और, इसके बाद एक URL और मैं आपको दे देता हूं, wordpress.org। ठीक है, अभी मैंने एक URL और शेयर किया है wordpress.org का। ठीक है, हाँ, एक मनदीप ने एक क्वेश्चन पूछा है, कैन आई होस्ट मल्टीपल वेबसाइट ऑन अ वन सर्वर? यस, हम मल्टीपल वेबसाइट जो हैं एक सिंगल सर्वर पे होस्ट करा सकते हैं, बिल्कुल करा सकते हैं मनदीप जी, ऐसा बिल्कुल भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, और इसको इंस्टॉल कराने के लिए आपको सेपरेट फोल्डर्स बनाने पड़ेंगे। आपका डोमेन जो आपका जो IP है वो तो सेम रहेगा, और ये डोमेन को डोमेन की हेल्प से वो चलते रहेंगे। मैं अभी आपको बता देता हूं, अगर आप इंटरनेट एक्चुअल डोमेन सर्वर्स पे काम करते हैं, मान लीजिए आपके पास लाइव सर्वर है तो उसमें आप को डोमेन क्रिएट करेंगे, और अगर आप नॉर्मल सर्वर पे काम कर रहे हैं, जैसे लोकल सर्वर पे हम इंस्टॉल कर रहे हैं, तो वहां पे आप सेपरेट फोल्डर बना के अपने साइट को इंस्टॉल कर सकते हैं। सभी को URL मिल गया है? यस सर। ठीक है, तो अपन अब आगे देखते हैं। तो वहां से आप XAMPP इंस्टॉल कर डाउनलोड कर लीजिए, और XAMPP इंस्टॉल करने के बाद ये URL से आप वर्डप्रेस को डाउनलोड करेंगे। तो वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के लिए आप सभी URL पे टाइप करेंगे wordpress.org। wordpress.org पे जाने के बाद यहाँ पे साइड में आपको एक विंडो मिलेगा, एक बटन मिलेगा गेट वर्डप्रेस। इस पे आप क्लिक करेंगे तो लेटेस्ट जो वर्डप्रेस है, जैसे अभी लेटेस्ट चल रहा 5.4.2, वो लेटेस्ट जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, अब जब आप जैसे ही अपना XAMPP सर्वर इंस्टॉल करते हैं आपकी मशीन पे, सर वी हैव 2 or 3 questions in the chat box too. यस मैम, मैं देख लेता हूं। वर्डप्रेस के लिए रजनीश जी मैंने एक लिंक दिया है, देखिए wordpress.org, ये मैं फिर से लिंक डाल दे रहा हूं। यहां से रजनीश जी आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं वर्डप्रेस। रुचि सिंह लोधी 32 बिट के लिए अलाउ करेंगे क्या? इसको कर सकते हैं। आपका मशीन 32 बिट है क्या? हाँ, तो आप इसको अलाउ करिए, या वहां पे वर्जन कंट्रोल पे जाके आप 32 बिट के लिए इंस्टॉल कर लीजिए। वहां पे जैसे 64 बिट के लिए भी है तो आपको 32 बिट के लिए भी मिल जाएगा। अमित जी ने भी यही सवाल किया था, वी कैन यूज 32 बिट सॉफ्टवेयर और 32 बिट। सर दिक्कत तो नहीं जाएगी 32 बिट पर डाउनलोड करेंगे तो? सर अगर आपका OS 64 बिट का है तो आप उसको यूज करिए। देखिए क्या है, अब जो PHP का वर्जन आ रहा है वो 7 आ रहा है। अगर आपका मशीन 64 बिट सपोर्ट कर रहा है तो आप 64 बिट को डाउनलोड कर लीजिए, तो उसमें PHP जो वर्जन है वो 7 पे चलेगा, क्योंकि जो नया वर्डप्रेस है वो PHP 7 पे चलता है। फिर आपको उसके लिए वर्डप्रेस फिर ओल्डर वर्जन डाउनलोड करना पड़ेगा। दिक्कत कुछ नहीं है सर, दिक्कत है PHP 5 और PHP 7 की। तो आप अगर ये XAMPP इंस्टॉल कर लेंगे 64 बिट वाला तो PHP 7 भी आपकी मशीन पे इंस्टॉल्ड हो जाएगा, लेटेस्ट है वो बस। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं 32 बिट करना है तो आप उसके रिपोजिटरी में जाके 32 बिट का इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सर। जी।
तो जैसे ही आप अपना XAMPP कंट्रोल पैनल इंस्टॉल करेंगे तो कुछ सामने इस तरीके का विंडो आपको दिखेगा। यहां पे हमको सिर्फ रन करना है अपाचे और MySQL। हमको फाइल जिला, मेल सर्वर और टॉम कैट इनको यूज नहीं करना है, ठीक है। हमको सिर्फ रन करना है अपाचे और हमको सिर्फ रन करना है MySQL। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे मैं एक चीज और आपको क्लियर कर दूं। अगर कुछ पार्टिसिपेंट के सिस्टम पे पहले से कोई सर्वर रन हो रहा है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा सभी, अगर पहले से कोई सर्वर आपकी मशीन पे रन हो रहा है तो इस पोर्ट नंबर 80 पे आपका सर्वर नहीं रन होने वाला, ठीक है। फिर आपको ये पोर्ट को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक इशू आ सकता है कि पोर्ट में एरर आ सकती है कि भाई ये पोर्ट वो ये एरर उन्हीं को आएगी जिनकी मशीन में पहले से कोई वेब सर्वर इंस्टॉल्ड है, ठीक है। अगर ऐसा हाउ डू आई चेंज द पोर्ट? आपको अगर पोर्ट चेंज करना है तो आप कॉन्फ़िग फाइल में जाके सर्वर पे आपको अपाचे की HTTPD कॉन्फ़िग फाइल मिलेगी, वहां से आप इस सर्वर, देखिए एग्जिस्टिंग मशीन का पोर्ट मत चेंज करिए, आप जो आपका पहले से चल रहा है उसका पोर्ट मत चेंज करिए क्योंकि उससे आपके एप्लीकेशंस बंद हो जाएंगे। आप इस सर्वर का पोर्ट चेंज कर सकते हैं HTTPD कॉन्फ़िग फाइल पे जाके। एक डेमन प्रोसेस है HTTPD, और उस HTTPD कॉन्फ़िग फाइल में जाके आप पोर्ट 80 को चेंज कर सकते हैं। अगर किसी को ये प्रॉब्लम आती तो अब उससे डिस्कस करें तो मैं आपको वो क्लियर कर दूंगा। सर ये जो वर्डप्रेस डाउनलोड किया हुआ सर, ये WinRAR फाइल में था तो मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया, उसके बाद क्या करना पड़ेगा? हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको, एक मिनट। अब देखिए क्या है, सर्वर रन करने के बाद सर्वर आप यहां से रन कर लेंगे। अब आपने जहां पे XAMPP इंस्टॉल किया है उस XAMPP के अंदर आपको एक फोल्डर मिलेगा htdocs, हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स। जैसे कि मेरा स्क्रीन आपको दिख रहा होगा। जब मैंने अपना XAMPP सर्वर इंस्टॉल किया तो ये मेरे C ड्राइव पे इंस्टॉल्ड हुआ है। सभी लोग यहाँ देखेंगे, यहाँ पे C ड्राइव के ऊपर इंस्टॉल्ड हुआ है। तो C ड्राइव के अंदर आपका एक XAMPP नाम का फोल्डर बन जाएगा, ठीक है। तो इस XAMPP के अंदर आपको एक htdocs नाम का फोल्डर मिलेगा। तो अगर आपने C ड्राइव पे इंस्टॉल किया है XAMPP तो आप वहां जाके देखें। अगर आपने कोई अनदर डायरेक्टरी स्ट्रक्चर लिया तो आप वहां पे जाके देखिए, XAMPP नाम का फोल्डर होगा। उस XAMPP नाम के फोल्डर के अंदर आपको एक नया फोल्डर मिलेगा htdocs, ठीक है। तो हमको उस htdocs फोल्डर के अंदर अपने XAMPP को अपने वर्डप्रेस को इंस्टॉल कॉपी करना है, ठीक है। एक काम करता हूं, मैं आपको ये पूरी प्रोसेस करके बताता हूं एक बार, ठीक है। आप सभी लोग स्क्रीन को देखिएगा। तो सबसे पहले मैंने अपना XAMPP सर्वर स्टार्ट कर लिया है, ठीक। अब XAMPP सर्वर जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरे C ड्राइव के अंदर XAMPP नाम का फोल्डर है। इसके अंदर मैं htdocs में गया और htdocs के अंदर मैंने एक अपना एक सेपरेट फोल्डर बना लिया। मान लेते हैं आज का अपन बना लेते हैं TechCube बना लेते हैं, ठीक है। तो एक फोल्डर मैंने बनाया TechCube, और इस फोल्डर के अंदर अपना मैं वर्डप्रेस का कोड इंस्टॉल करूंगा, ठीक है। तो वर्डप्रेस का कोड मैं लेके आता हूं।
ये मैंने जो एक जिप फाइल डाउनलोड की थी, ये जिप फाइल इधर आ गई है और अब मैं इसको यहां पे एक्सट्रैक्ट कर रहा हूं। तो ये देखिए मैंने जिप को एक्सट्रैक्ट कर लिया है और ये मेरा कोड था। इस कोड को मैं अपने रूट फोल्डर पे ले आता हूं, ठीक है। अब ये मेरा फाइल स्ट्रक्चर यहाँ पे पूरा का पूरा जो wordpress.org से मैंने सोर्स कोड डाउनलोड किया था, वो पूरा का पूरा सोर्स कोड जो है वो मैंने एक htdocs के अंदर टेक्यूब नाम का फोल्डर है उसके अंदर इंस्टॉल कर दिया, कॉपी कर दिया, ठीक है। htdocs क्या है? htdocs हमारे सर्वर का वो फोल्डर है जहां पे हमें अपना वेबसाइट इंस्टॉल करना पड़ता है। तो आप कोई भी वेबसाइट बनाएंगे तो आपको htdocs के अंदर इंस्टॉल करना पड़ेगा। XAMPP के केस में कई बार अगर आप अलग सर्वर यूज करते हैं तो इस फोल्डर का नाम public_html भी होता है। तो आपको सिर्फ वो पब्लिक फोल्डर चाहिए जहां पे आपको अपना कोड रखना है। सेकंड स्टेप ये आता है कि भाई ठीक है, आपने अपना कोड इंस्टॉल कर लिया, कोड कॉपी कर लिया, तो अब आपका जो URL है, एक्चुअल URL क्या बनेगा? एक्चुअल जो आपका URL रहेगा वो रहेगा कैसा? कुछ इस तरीके का। लोकल होस्ट, देखिए अब जो मेरा आईपी नॉर्मली बाय डिफॉल्ट इसमें लोकल होस्ट जो होता है इसका यूज किया जाता है सर्वर को एक्सेस करने के लिए। अगर आपकी मशीन आईपी पे डली है तो आप उसमें आईपी यूज कर सकते हैं। और अब हम यहाँ पे अपना फोल्डर डालेंगे, तो फोल्डर का नाम था टेक्यूब, TEQIP। इसको किया एंटर, तो ये मेरा एक URL बन गया, ठीक है। तो अपनी जो वेबसाइट है, जो वेबसाइट रन होगी उसका URL क्या होगा? localhost/techcube। लेकिन अभी अगर हम इसको कंटिन्यू करेंगे तो ये इंस्टॉल नहीं होगा, क्योंकि डेटा को कॉपी करने के बाद, जो सोर्स कोड है इसको कॉपी करने के बाद भी एक स्टेप बचता है कि हमको अपना डेटाबेस बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो डेटाबेस कैसे एक्सेस करना है? तो उसके लिए हम लिखेंगे localhost/php myadmin। मैंने URL पे, मैंने चैट बॉक्स पे लिख दिया है कि कैसे आपको MySQL सर्वर ओपन करना है। तो उसके लिए आप PHP स्क्रिप्ट का यूज करेंगे, PHP myadmin, ठीक है। यहां पे इस PHP myadmin में हमको सिर्फ एक डेटाबेस क्रिएट करना है, ठीक है। तो अपन इसका नाम लिख देते हैं techcube_db। तो मेरा डेटाबेस हो जाएगा techcube_db, ठीक है। ये डेटाबेस क्या है? ये डेटाबेस वो पार्ट है। सर ये मैं PHP myadmin लोकल होस्ट का खोल रहा हूँ तो सर ये गूगल सर्च हो जा रहा है सर। हाँ, आप उसकी वहां से क्या करिए, HTTP को वो करके डालिए। वो गूगल पे डायरेक्ट आपका सर्च कर रहा है। वो क्रोम की फैसिलिटी है, वो डायरेक्ट उसको गूगल पे सर्च कर रहा है। उससे वो HTTP हटा दो शुरू का, कॉपी करके। यस सर। तो यहाँ पे आप जैसे लिखेंगे techcube_db, जो भी आपको डेटाबेस बनाना है, जिस नाम का डेटाबेस आप अपने वर्डप्रेस की साइट के लिए बनाना चाहते हैं वो आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इसका नाम रखा है techcube_db, ठीक है। बस इतना बना के हमको छोड़ देना है। तो हमने क्या किया? पहला स्टेप, सोर्स कोड डाउनलोड किया। सोर्स कोड डाउनलोड करने के बाद उसको हमने अपने htdocs फोल्डर पे इंस्टॉल किया, कॉपी कर दिया सिर्फ, ठीक है।
स्टेप नंबर 3, एक डेटाबेस, ब्लैंक डेटाबेस क्रिएट किया। ठीक, अब अपन समझते हैं इसका इंस्टॉलेशन स्टेप्स। तो जैसे ही आप URL पे जाएंगे तो मैंने फोल्डर कहाँ रखा था, मैंने फोल्डर अपना सोर्स कोड रखा था लोकल होस्ट के htdoc मतलब XAMPP के htdocs फोल्डर के अंदर, टेक्यूब के अंदर। ठीक है, अब मैं उसको URL को नेविगेट करता हूं तो मैं लिखूंगा लोकल होस्ट /TechCube, और यहाँ पे मैं TechCube लिख रहा हूं, आपने जो फोल्डर बनाया होगा आप वो फोल्डर लिखेंगे। ठीक है, इसको जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपके सामने एक लैंग्वेज सिलेक्शन का विंडो ओपन होगा कि भाई आप अपने वर्डप्रेस को किस लैंग्वेज पे इंस्टॉल करना चाह रहे हैं। ठीक है, हम इसको इंग्लिश पे इंस्टॉल करते हैं, तो सब फिर मैं करूंगा कंटिन्यू। ठीक, अब यहां पे एक प्रॉब्लम आई। ये प्रॉब्लम ये है कि वर्डप्रेस बाय डिफॉल्ट सारी की सारी फाइल्स को 644 परमिशन पे सेट करके रखता है। अभी किसी ने क्वेश्चन किया था मेरे से कि इनबिल्ट सिक्योरिटी मैकेनिज्म क्या है, तो ये भी एक इसका सिक्योरिटी मैकेनिज्म है कि बाय डिफॉल्ट जितनी भी फाइल आप अपलोड कर रहे हैं उसका जो परमिशन मोड है वो 644 है। ठीक है, एग्जीक्यूटेबल नहीं है। ठीक, तो अब हमें वापस सोर्स कोड अपलोड करने के बाद, ये स्टेप्स को आप जरा अच्छे से समझिएगा सभी लोग। आपने सोर्स कोड अपलोड किया, सोर्स कोड अपलोड करने के बाद आपने डेटाबेस क्रिएट किया। ठीक है, अब आपके वर्डप्रेस के फाइल स्ट्रक्चर में आपको एक फाइल मिलेगा wp config sample। सभी ने इतना स्टेप परफॉर्म कर लिए हैं? यस सर। ठीक है, तो आप यहां देखेंगे wp config sample नाम की एक फाइल आपको मिलेगी। तो सबसे पहले हमें इसको रीनेम करना है। ठीक है, तो स्टेप नंबर 4, wp config अंडर -sample को आप रीनेम करेंगे wp config तक। ठीक है, मतलब उसमें से आपको सैंपल हटा देना है, सिंपल। ठीक, आपने सैंपल पार्ट हटा दिया। ठीक है, तो अब ये कुछ ऐसा दिखने लगेगी wp config। एक नॉर्मल कोई से भी एडिटर पे इसको हम ओपन करते हैं। जैसे आप इस फाइल को ओपन करेंगे तो शुरू की 23 नंबर की लाइन पे आपको कुछ डिटेल्स फिल करनी पड़ेंगी। ठीक है, आपको कुछ डिटेल्स फिल करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट लाइन आपको बोल रहा है द नेम ऑफ द डेटाबेस फॉर योर वर्डप्रेस। तो अपन ने जो डेटाबेस बनाया था उसका क्या नाम था, इसमें जो नाम था वो था TechCube_DB। ठीक, बाय डिफॉल्ट आपके जो MySQL सर्वर का यूजर आईडी होता है, विंडोज के केस में वो रूट है। यहां पे हमको अपने डेटाबेस सर्वर का यूजर आईडी डालना है, और विंडोज के केस में जब आप XAMPP का हेल्प से MySQL सर्वर इंस्टॉल करते हैं तो पासवर्ड नल होता है। ठीक है, आपको ये सिर्फ 3 चीजें इंस्टॉल करनी, 3 चीजें एडिट करनी है। आपको डेटाबेस नाम डालना है, आपको रूट यूजर आईडी डालना है, और आपको पासवर्ड डालना है। ठीक है, तो मैंने अपने MySQL डेटाबेस सर्वर में कोई पासवर्ड नहीं डाल के रखा है, और जितने भी लोग XAMPP का यूज कर रहे होंगे तो डिफॉल्ट पासवर्ड नल होता है इसमें। ठीक है, डिफॉल्ट कोई पासवर्ड होता नहीं है, आप उसको बदल भी सकते हैं। ठीक है, तो जितने लोगों ने अभी XAMPP डाउनलोड किया है तो वो डिफॉल्ट नल डाल देंगे। अगर कोई लैंप के थ्रू लिनक्स अपाचे MySQL पे काम कर रहा है तो फिर वो अपने हिसाब से पासवर्ड इंस्टॉल कर सकता है। ये चेंजेस करने के बाद हम इसको सेव कर देंगे। ठीक, ये मैंने कोड सेव कर दिया। सर, हाँ सर वैसे ही पासवर्ड क्यों मांगता है? अगर ये पासवर्ड नहीं डालोगे आप तो जो आपने डेटाबेस ब्लैंक डेटाबेस बनाया है उसके अंदर ये अपने डेटा आपके पोस्ट को और उसके अंदर टेबल कैसे क्रिएट करेगा। देखिए क्या होता है, जब आप डेटाबेस में डेटा स्टोर करना चाहते हैं तो उसके स्टेप्स होते हैं।
सबसे पहले कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है, और जो यूजर आपने प्रिविलेज्ड यूजर दिया है उसका आप यूजर आईडी डालते हो और उसका पासवर्ड डालते हो। इन्हीं की मदद से ही तो डेटाबेस से कनेक्शन एस्टेब्लिश करेगा, इसीलिए आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा। ओके सर। तो पासवर्ड एंटर, आपने पासवर्ड डाल दिया। अब हम वापस अपने साइट पे जाते हैं जहां पे हम साइट को बना रहे, साइट को कर रहे थे। Sir, can I change the password? Means it's null, but can I set the password? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं आप पासवर्ड चेंज। आप पासवर्ड चेंज करने के लिए MySQL पे जाएंगे और वहां से आप पासवर्ड, किसी भी यूजर का पासवर्ड बना सकते हैं। आप वहां से, जैसे यहाँ पे रूट आपका डिफॉल्ट पासवर्ड है, तो आप रूट को भी बदल सकते हैं। आप किसी अपने मन से कोई नया यूजर बना सकते हैं। आप यूजर को प्रिविलेजेस दे सकते हैं। आप यूजर के पासवर्ड्स क्रिएट कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ओके सर जी। तो अब वापस मैंने लिखा और फिर मैं करता हूं कंटिन्यू। तो अब यहां देखिए, जब हमने वो सेटिंग चेंज करी तो यहां पे इंस्टॉलेशन स्टेप्स में कुछ चीजें एक्स्ट्रा आई। ये लास्ट स्टेप है आपका, और आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, तो वर्डप्रेस, जिस भी आप वर्डप्रेस का साइट बना रहे हैं उसका टाइटल, तो मान लेते हैं अपन, इसका मैं नाम दे देता हूं टेक्यूब WP क्लासेस। इसका यूजर आईडी, अच्छा ये यूजर नेम क्या है? ये यूजर नेम है, आप देखिए क्या है, मैंने आपको शुरू में बताया था कि वर्डप्रेस एक CMS है। तो CMS है मतलब कि कहीं से डेटा एंट्री का काम चलता है, कहीं से डेटा एंट्री का काम हो रहा है। अब डेटा एंट्री का काम हो रहा है तो उसको एक्सेस करने के लिए कोई यूजर होगा, तो ये उसका सुपर यूजर है। ठीक है, तो आप अपने साइट का अब एडमिनिस्ट्रेटर क्रिएट करोगे कि आपके साइट, आपकी वर्डप्रेस की साइट का एडमिनिस्ट्रेटर कौन होगा। तो आपने बना दिया, मैंने उसका नाम दे दिया है TQ एडमिन। ठीक है, TQ एडमिन। अब मैं ऐसा करता हूं, यहां पे एक पासवर्ड डाल देता हूं। ये तो अच्छा, बाय डिफॉल्ट आपको पासवर्ड जो है सिस्टम जनरेट करके देता है। अगर आप चाहें तो अपने मन से भी एक पासवर्ड बना सकते हैं। तो मैं सिंपलिसिटी के लिए एक सिंपल पासवर्ड बना रहा हूं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 स्टार, और यहां पे मैं कंफर्म कर देता हूं कि ठीक है, आई एम एग्री विद दिस पासवर्ड। एक मैं अपनी ईमेल आईडी डाल देता हूं। ठीक है, और आपको सर्च इंजन विजिबिलिटी को टिक नहीं करना है। ठीक है, अगर आप इसको चेंज कर देंगे तो आपकी साइट जो है वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइज नहीं होगी, तो हमको उसको टिक नहीं करना है। ठीक है, उसको अनचेक रखना है। और इंस्टॉल बटन आपको दबाना है। इतनी एंट्री फिल करने के बाद आप इंस्टॉल बटन पे क्लिक करेंगे। आपका जो वर्डप्रेस है वो इंस्टॉल हो गया। ठीक है, अब वापस मैं अपनी साइट के URL पे जाता हूं और यहां पे आपकी एक वेबसाइट क्रिएट हो गई। ये 5 मिनट इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वर्डप्रेस की। ठीक, फ्रंट पैनल आपका दिखने लगा कि ठीक है भाई, हाँ कुछ वेबसाइट जैसा आ गया है, कुछ बन रहा है। इतना स्टेप सभी ने परफॉर्म किए? कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे कि E सर्टिफिकेट से रिलेटेड। सर उसके, अर्जुन जी, उसके लिए आप अपने कोऑर्डिनेटर से कंसल्ट करेंगे। यस सर। वो आपको डिटेल्स देंगे उसके लिए।
संदीप जी सेशन के लिए भी आप कोऑर्डिनेटर से कंसल्ट करेंगे। सुमाया, ये आपने क्या पूछा उन लोगों के लिए जो मोबाइल से यूज कर रहे हैं? तो देखो बेटा, मोबाइल पे आप अगर वेब सर्वर इंस्टॉल कर सकते हो तो आप इसको यूज कर सकते हो, नहीं तो इस पूरे सेशन में हमको कंप्यूटर का यूज करना है। ठीक है, आप तो हाँ हाँ हेलो पूछिए। हाँ हाँ सर, आवाज आ रही है सर? हाँ हाँ पूछिए पूछिए। सर ये जो 29 नंबर में जो एडिट करना था पासवर्ड, तो सर पासवर्ड क्या डालना है सर? हेलो हाँ हाँ हाँ, सर, ये किसका जो पासवर्ड पूछ कॉन्फ़िग रहे हैं? फाइल जो कॉन्फ़िग फाइल में जो उसमें से सैंपल हटाया था उस पास। हाँ 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 हेलो सर, हाँ देखिए, यस सर, यस सर। तो सर जो 29 नंबर की लाइन है, 29 नंबर हाँ की लाइन उसमें में देखिए सर जो आप, पासवर्ड है, हाँ 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 आपने जो, पासवर्ड है हाँ हाँ मैं बता रहा हूँ आपको। उसमें पासवर्ड में देखिए आपने ज़ैम्प का यूज किया है क्या सर्वर बनाने के लिए? यस सर, जैम ठीक है 32 बिट का ठीक है यूज ठीक किया है है। यस सर, ठीक है यस सर। ठीक। आप कुछ मत करिए, उसको ब्लैंक कर दीजिए, मतलब अच्छा, दो सिंगल ओके कोट ओके लगा के ओके छोड़ दीजिए उसको। ओके 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 ओके। मतलब उसके जो बीच में पासवर्ड हेयर जो लिखा हुआ है उसको मैं डिलीट कर देता हूँ, नहीं बस नहीं नहीं दैट्स नहीं, इट। हाँ उसको डिलीट करिए, पर कोट लगे रहने दीजिएगा और बीच में जी जी, स्पेस नहीं होना। मैं सिंगल स्पेस, नॉट स्पेस। कुछ कोई स्पेस नहीं, कोई स्पेस नहीं, ओके 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 सर, ओके कोई स्पेस नहीं। मैं चैट जी। बॉक्स पे इसको शेयर करता हूँ। अच्छा आपने सवाल किया है, ये देखिए इसको इस तरीके से लिखना है। एवरीवन को मैं कर देता हूँ एंड सेव। और सेव। ओके ओके। अच्छा, नेक्स्ट हाउ टू राइट यूआरएल। यूआरएल पर उसको कैसे राइट हाँ करना है अब सर? यूआरएल पे वेब ब्राउजर। इसको ओपन करने के लिए आपने अपना फोल्डर क्या बनाया है सर, जहाँ पे आपने सर टेक्क्यूप आईपी बनाया है सर, टेक्क्यूप आईपी। ठीक है, तो अब आप लिखिए यूआरएल पे जैसा मैंने लिखा, लोकल होस्ट स्लैश टेक्क्यूप। लोकल होस्ट स्लैश, हाँ ओके, टेक्क्यूप। सर स्मॉल कैपिटल? तो जैसा आपने वहां लिखा है, आपका फोल्डर कैसा है, कैपिटल है कि स्मॉल? फोल्डर कैपिटल, कैपिटल सर। तो सब कैपिटल में आएगा। And then enter. Then enter. Okay. Yes sir, इंग्लिश आया है सर, इंग्लिश आप उसको लैंग्वेज इंग्लिश आस्क कर करके रहा ओके करिए। है। इंग्लिश कंटिन्यू करूँ सर? कंटिन्यू। ओके। एंड सर अब इसमें साइट टाइटल, अब आप उसमें साइट टाइटल डाल दीजिए, जो भी आपको अपना साइट, जैसे मैंने टेक्क्यूब क्लासेस डाला है साइट टाइटल। ओके, तो मैं भी वही कर देता हूँ। साइट टाइटल के बाद आप एक सर यूजर नेम, स्मॉल में लिखूं, कैपिटल में लिखूं, इसमें आप जैसा चाहें, जैसा आप लिखेंगे वो अकॉर्डिंग टू सीएसएस वहां रिफ्लेक्ट होगा। ओके। मतलब उसके कैपिटल स्मॉल से मतलब नहीं, कैपिटल स्मॉल का प्रॉब्लम Okay. आएगा जब यूजर आईडी पासवर्ड आप क्रिएट करेंगे। ओके सर। एंड यूजर नेम आप एक बनाइए, ताकि हम जब एडमिन को एक्सेस करेंगे, एडमिन पैनल जी को इसके, तो उसके जी लिए हमको सिक्योर रहता है वो, तो उसको एक्सेस करने के लिए हमें एक यूजर आईडी चाहिए। आप एक कोई सा भी एक एडमिन, टीक्यू एडमिन बना लीजिए। ठीक है ये मैं आपको बताता हूँ सर। स्मॉल कैपिटल कोई भी ले सकते हैं सर? यहाँ पे सर आप जो भी लेंगे उसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि उस हिसाब से ही वो चलेगा। ये स्क्रीन मैंने शेयर करी है सामने, आप देखेंगे। ओके, ये सर आपने स्मॉल में दिया है। हाँ हाँ, आप स्मॉल कैपिटल जो लिखेंगे वैसा आपको वहां वो करना पड़ेगा। तो अभी ओके ओके ओके, मैं राइट कर लेता हूँ नोटबुक। क्योंकि इसका पासवर्ड अगर आप भूल जाते हैं तो हम डेटाबेस से इसका पासवर्ड निकालने के लिए फिर हमें एक रिवर्स प्रोसेस करनी पड़ती है। ओके, मैं कांस्टेंट रखूंगा। टीक्यू एडमिन एंड पासवर्ड। ओके सर, पासवर्ड तक हो गया है। अब एंड नीचे कंफर्म भी कर आपने दिया जो है। पासवर्ड डाला होगा उसको वीक होगा तो उसको कंफर्म करना पड़ेगा। ओके, कंफर्म कर दिया। और एक ईमेल आईडी। ओके श्योर। ओके, ईमेल आईडी हो गया सर। हाँ, अब नीचे इंस्टॉल कर दीजिए उसको। सर्च इंजन की विजिबिलिटी को अनचेक रहने हाँ, दीजिए। चेक नहीं लगाया, चेक नहीं लगाया सर, जैसा आपने बोला मैंने चेक नहीं लगाया। AMITIMAC2018@gmail.com। ओके। इंस्टॉल वर्डप्रेस। हाँ यस सर, कर दिया सर। बस अब वेटिंग आपका ले रहा है, वेटिंग थोड़ा सा टाइम लेगा और वो यस इंस्टॉल। सर।
सर सेव कर दूं, पासवर्ड सेव मांग रहा है तो सेव कर दूं? हाँ हाँ बिल्कुल, आपके ये तो लोकल इंस्टॉलेशन है सर, आप बिल्कुल कर सकते हैं। यस सर। तो सर यस आ रहा है एक, तो ये तो वो तो सर एंटीवायरस का आ रहा है सर, प्रो ईमेल प्रोटेक्शन, तो कर दूं सर, यस कर दूं उसको? एंटीवायरस का आ रहा है, क्विक हिल एंटीवायरस प्रो ईमेल प्रोटेक्शन। आप चाहे तो उसको कर लीजिए, क्योंकि वो सर देन लॉगिन। हाँ, अब लॉगिन मत करिए सर अभी, ओके है ना। आप लॉगिन करने पे एडमिन पे ले जाएगा। अब आप साइट को नेविगेट करिए, फिर से localhost/techkip करिए। ओके आ गया सर, हेलो वर्ल्ड आ गया सर, थैंक यू सर, थैंक यू। एक आपको सामने एक URL खुला होगा, एक नया पेज बन के आया होगा। ये सर आया ना सर, TechCube क्लासेस जस्ट अनदर वर्डप्रेस साइट एंड हेलो वर्ल्ड, जैसा आपके में आया सर वैसे ही आया सैम। यस सर, यस सर। देखिए क्या है, अब ये इसमें कुछ भी टेक्निकल हमारा नहीं नॉलेज वो लगा इतना। यस सर, यस। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ एक्चुअल में बैकएंड में, मैं आपको बताता हूँ कि डेटाबेस, जैसे अभी एक स्टूडेंट ने सवाल किया था कि डेटाबेस का यूजर आईडी पासवर्ड क्यों डाला जी। तो आपको ध्यान होगा जब आपने डेटाबेस क्रिएट किया तो यहाँ पे कुछ नहीं बना था शुरू में। नो टेबल्स थे, कोई भी टेबल नहीं था हमारे पास। लेकिन अब यहाँ देखेंगे आप, तो यहाँ पे आपके कुछ 12 टेबल्स क्रिएट हो गए, है ना। तो ये टेबल्स जितना भी आप चेंजेस इस वर्डप्रेस में करेंगे, ये सारा का सारा डेटा आपके इन टेबल्स में स्टोर होगा। ठीक है, सारा का सारा का जो डेटा है वो इन टेबल्स में आपका स्टोर होगा। नहीं। और ये देखिए यहां पे सामने मैंने एक टेबल ओपन किया है, WP यूजर्स। WP यूजर्स जो है, अब WP यूजर्स में आप देखिए आपकी पासवर्ड स्ट्रिंग कैसी दिख रही है। आपने ये पासवर्ड नहीं डाला था, आपने पासवर्ड कुछ अलग डाला था, लेकिन वो स्ट्रिंग देखिए यहाँ पे कैसी आ रही है। तो इनबिल्ट जितने भी सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज होते हैं, इसको ये एनक्रिप्टेड फॉर्म पे ही स्टोर करता है। पासवर्ड को एनक्रिप्टेड फॉर्म पे स्टोर किया है इसने, नॉर्मल स्ट्रिंग के फॉर्म में स्टोर नहीं किया है। सर एनक्रिप्टेड फॉर्म भी तो हैक हो सकता है। देखो हैक तो बेटा आप देखो क्या है, अगर आपको अपने हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को हैक से बचाना है तो फिर आपको बहुत सी चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। आपको सबसे पहले सर्वर ही सिक्योर करना पड़ेगा। मतलब अभी जैसे हम नॉर्मल HTTP पे काम करते हैं तो फिर हमको वहां HTTPS लेना पड़ेगा। ये तो एक एप्लीकेशन है। सर रिकॉर्डिंग इसकी सर कहाँ पे मिल जाएगी सर? यहाँ नेटवर्क इशू बहुत ज्यादा हो रहा है सर मेरे एरिया में यहाँ पे। फाइन बेटा, वी विल प्रोवाइड द रिकॉर्डिंग्स। अगर कोई भी आपको इंटरनेट इशू है, कोई बात नहीं है ना, वी विल प्रोवाइड। यस सर, ओके सर। एंड इट इज काइंडली रिक्वेस्टेड कि केवल सर्टिफिकेट के लिए कुछ मैसेजेस आ रहे हैं तो आप वेबसाइट बनाना सीख जाएंगे ना, तो आप खुद सर्टिफिकेट देने लगेंगे। नहीं सर, सर्टिफिकेट वाला मैंने नहीं किया सर। नहीं, एक्चुअली आई एम टॉकिंग अबाउट द जनरल थिंग। आई हैव गॉट द मैसेजेस फ्रॉम द वेरियस पार्टिसिपेंट्स। सो सर्टिफिकेट हम प्रोवाइड करेंगे, बट सर्टिफिकेट से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो डिलीवरी आपको दी जा रही है वो आप ग्रास्प कीजिए। I have got the message from the participant who is I forgot the name. So सारी चीजें हैं, पहले जो डिलीवरी हो रही है वो, इन केस अगर कुछ इंटरनेट इश्यूज है तो आप को हम रिकॉर्डिंग्स वगैरह सब अभी सेशन के एंड में मैं आपको ये PPT शेयर कर दूंगा, तो इसमें आपके सारे स्टेप्स आपको मिल जाएंगे। उससे भी आपकी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, फाइन। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा था कि सभी लोगों ने इतना इंस्टॉल कर लिया है? सर वो आप बता रहे थे, वो एन्क्रिप्शन का हैक होने का आप कुछ बता रहे थे। देखिए आपको अगर एन्क्रिप्शन, आपको अगर हैक से बचना है, आप देखो यार, हैकिंग को आप ये नहीं कह सकते कि मेरा देखो कोई भी सर्वर प्रोवाइडर, आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, कोई भी सर्वर प्रोवाइडर आपको ये कमेंट नहीं करेगा कि 100% हमारा सर्वर सिक्योर है। पहली चीज, क्योंकि जब
क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो इतनी सस्ती जो आपको होस्टिंग मिल रही है 2000 रुपए साल, 3000 रुपए साल में, तो आपको डेडिकेटेड होस्टिंग नहीं मिल रही है। आपको जो होस्टिंग दी जा रही है वो शेयर्ड होस्टिंग है। मतलब एक, आप इसको ऐसे समझिए कि एक फोल्डर जो है वो बहुत से लोगों को बटा हुआ है। तो शेयर्ड, सबसे पहले अगर आप चाहते हैं कि आपका सर्वर सिक्योर हो, तो सबसे पहले शेयर्ड होस्टिंग के बदले आप एक डेडिकेटेड होस्टिंग लीजिए। डेडिकेटेड होस्टिंग के बाद आप उसमें एक SSL सर्वर इंस्टॉल, SSL स्क्रिप्ट जो होती है, सिक्योर सॉकेट लेयर, जिसको आपने नेटवर्किंग में पढ़ा होगा, आप SSL को इंस्टॉल करिए। तब जाके आप कह सकते हैं कि हाँ मेरा सर्वर अभी सिक्योर है। सिर्फ हम एप्लीकेशन के बेस्ड पे हम इसको ये नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ वर्डप्रेस की बेस पे आप ये नहीं कह सकते कि आपने कोई वर्डप्रेस पे प्लगइन भी इंस्टॉल कर लिया है तो आपका आप ये नहीं कह सकते कि आपका सर्वर सिक्योर है। क्योंकि सिक्योरिटी की जब हम बात करते हैं तो दो चीजों पे सिक्योरिटी डिपेंड कर रही है। क्या आपका सॉफ्टवेयर कॉम्प्रोमाइज हुआ है कि आपका सर्वर ही कॉम्प्रोमाइज हो गया है? अगर सर्वर कॉम्प्रोमाइज हुआ है तो आपकी साइट के साथ साथ जितनी साइट उस सर्वर पे होस्ट थी वो सारे इफेक्ट हो जाएंगे। तो सिक्योरिटी की बेस्ट प्रैक्टिस रहती है कि हमें कोई भी प्लगइन इंस्टॉल नहीं करना है और कोड को हमें डीबग करना है। हमको ये देखना है कि क्या होता है। नॉर्मली जब एक कोई ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जब बहुत पॉपुलर होता है तो उसके बहुत से लोग प्लगइन्स बना के देते हैं। तो हमें ये नहीं करना है कि हम कोई भी प्लगइन डाउनलोड करें, कोई भी प्लगइन डाउनलोड करके उसको रन कर दें। प्लगइन को इंस्टॉल करने से पहले आप उसके बारे में थोड़े रिव्यूज देखिए और थोड़ा सा पढ़िए कि क्या ये प्लगइन का कोई सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है कभी। अगर ऐसा होता है तो आप उसमें जाके उस प्लगइन को अवॉइड करिए। मतलब आपको दोनों तरीकों से ध्यान रखना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि जो सर्वर है और हमारा एप्लीकेशन है वो कैसे सिक्योर रहे। सिर्फ आप एप्लीकेशन पे इसको नहीं कर सकते, आपके पास एक फायरवॉल भी होना चाहिए जो आपके सर्वर पे रहेगा। और कोई डाउट किसी को? सर ये 127.0.1 ये आपका लूप बैक एड्रेस है। हाँ, हाँ। आपका ये लूप बैक एड्रेस है जो आपके प्रोवाइड, आपका जो TCP/IP सूट होता है वो आपको एक लूप बैक एड्रेस प्रोवाइड कराता है। क्योंकि आपका जो इंटरनल TCP/IP है वो खुद एक क्लाइंट सर्वर मॉडल पे रन होता है। तो ये आपका लूप बैक एड्रेस है। Okay. Oh, sir, can we access localhost XAMPP or with the help अगर आपके पास IP, अगर आपकी मशीन पे अगर आपने अपने मशीन पे एक IP प्रोवाइड करके रखा है तो आप लोकल होस्ट के बदले उस IP को यूज कर सकते हैं। बिल्कुल किया जा सकता है। ओके। और कोई डाउट? अमित जी कोई डाउट? चलिए, अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि ठीक है यार ये तो वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया लेकिन ये देखने में बहुत अजीब सा दिख रहा है। देखिए नॉर्मली क्या था, मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं। जो वर्डप्रेस था या जो वर्डप्रेस अभी हम यूज कर रहे हैं वो बनाया गया था ब्लॉगर, ठीक है। जो बेसिकली जो वर्डप्रेस था ना वो ब्लॉग के लिए बनाया गया था। लेकिन जब इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी तो फिर इसको वेबसाइट के लिए बनाया जाने लगा। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, ब्लॉग और वेबसाइट इन दोनों में से प्रेजेंटेशन का डिफरेंस है। बहुत से लोग होते हैं, आपने बहुत से ब्लॉग सुने होंगे, कई लोग होते हैं जो अपना ब्लॉग लिखते हैं, है ना, भाई हमारा ब्लॉग है, हमारा ब्लॉग है। तो आप देखिए ब्लॉग भी एक वेबसाइट है, ठीक है। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द ब्लॉग and the website is theoretically the difference is how data is being presented. तो जब आपने अपना वर्डप्रेस इंस्टॉल किया ना, तो जो आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया है जो इस तरीके से आपको दिख रहा है ये एक ब्लॉगर फॉर्मेट में दिख रहा है। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको एक पोस्ट दिख रही है, ब्लॉगर के में एक पोस्ट है और उस ये देखिए यहाँ पे देखिए रिसेंट पोस्ट, इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको पोस्ट के बारे में बता रहा है। यहाँ पे लिखा वेलकम टू वर्डप्रेस साइट, दिस इज योर फर्स्ट पोस्ट, ठीक है। और इसमें एक कमेंट आया। मतलब जब आप ब्लॉगर की बात करते हैं तो ब्लॉगर का एक नेचर होता है, ठीक है। और हर ब्लॉगर एक वेबसाइट है लेकिन हर वेबसाइट एक ब्लॉगर नहीं, इसको आप ऐसे समझिएगा, ठीक है।
तो बाय डिफॉल्ट जो वर्डप्रेस होता है वो ब्लॉगर के लिए बनाया गया, लेकिन आप उसको इस तरीके से यूज कर सकते हो कि वो एक नॉर्मल नॉर्मल वेबसाइट भी दिखने लगे। ठीक है, अ ब्लॉग इज अ बेसिकली वेब लॉग दैट अ ब्लॉगर मेक यूज ऑफ द क्रोनोलॉजिकल लिस्टिंग ऑफ ब्लॉग पोस्ट। डेट के हिसाब से, मंथ के हिसाब से हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो होता है अपने पोस्ट को दिखाते हैं। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हमने देखा है कैसा होता है कि भाई जो सबसे लेटेस्ट चीज है, लेटेस्ट डेट पर जो भी डेटा डला है वो सबसे ऊपर दिखेगा। ये ब्लॉग का नेचर होता है। तो नॉर्मली जो आपका वर्डप्रेस होता है ना वो ब्लॉगर नेचर का है। ठीक है, तो इसीलिए उसका जो फ्रंट पेज अभी आपको दिखा होगा वो एक ब्लॉगर नेचर की तरह दिखा कि ऊपर आपको पोस्ट दिख रहा है, उसके नीचे कमेंट दिख रहा है। अब हमको इसको चेंज करके एक वेबसाइट की तरह दिखाना है। अगर हम आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं कि अगर आपसे मैं बोलता हूं कि क्या भाई बेसिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्लॉग क्या है, तो बेसिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्लॉग है, इट इज अ क्रॉनिकल लिस्टिंग ऑफ ब्लॉग पोस्ट, अ कमेंटिंग सिस्टम। ब्लॉग में ब्लॉगर्स जो होते हैं उसमें कमेंटिंग सिस्टम होता है कि भाई लोग अपना थॉट शेयर करते हैं और जो दूसरे लोग होते हैं, जो रीडर्स होते हैं, उस थॉट को पढ़ते हैं, उसके थॉट को देखते हैं और फिर अपना कमेंट अपलोड करते हैं, है ना। ब्लॉग पोस्ट आर आर्चिव्ड बाय द डेट, कैटेगरी, ऑथर टैग्स एंड सब कैटेगरीज। और यहाँ पे सिंपल एक RSS फीड भी होता है ताकि आप अपने पोस्ट को उन यूजर्स को भी दे पाएं जो आपके पोस्ट को रेगुलरली रीड नहीं कर पा रहे, तो आप उनकी मेल पे एक RSS फीडर इंस्टॉल कर देते हैं कि यार आप हमको मेल ज्वाइन कर लीजिए, जैसे कोई नया पोस्ट आएगा वो यूज कर लिया जाएगा। अगर हम वेबसाइट की बात करते हैं, a website can be anything on the internet presented in the HTML, CSS, Java, JavaScript, Python, PHP based, it is a website। तो ब्लॉगर भी एक वेबसाइट है, ठीक है, लेकिन हर वेबसाइट एक ब्लॉगर नहीं है। इस चीज को बिल्कुल आप अपने मन पे बांध लीजिए। बाय डिफॉल्ट वर्डप्रेस का नेचर ब्लॉगर है। आप बाय डिफॉल्ट बिगैर किसी चेंजेस के आप उसको इंस्टॉल करेंगे तो ब्लॉगर की तरह इंस्टॉल होगा। अब हमें उसको एक वेबसाइट की तरह इंस्टॉल करना है। ठीक है, a website may be with the blog, but the home page would be more for browsing and the page and not just a post. A blog can be a part of website in the form of the separate page linked to the home page। ठीक है, एक्चुअली में क्या होता है जब आप एक वेबसाइट की बात करते हैं ना तो उसमें एक मीनू बार का कॉन्सेप्ट आ जाता है, एक साइड बार का कॉन्सेप्ट आ जाता है, आपके लिमिटेड पेजेस होते हैं। ब्लॉग में लिमिटेशन जो है ऐसा नहीं है, उसमें जो डेटा पोस्ट होती है, जो पोस्ट होती है वो डेट वाइज, कैटेगरी वाइज अरेंज होती है। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, मनदीप जी ने पूछा है कि पोस्ट इज सिमिलर एज अ ब्लॉग। देखिए क्या है, ब्लॉग का जो इंटरनल पार्ट है, जब आप ब्लॉग डिजाइन करते हैं मनदीप जी, तो उसमें पोस्ट और पेजेस के दो कॉन्सेप्ट चलते हैं। ठीक है, पोस्ट इज सिमिलर एज अ ब्लॉग, इसमें ब्लॉग के अंदर पोस्ट और पेजेस होते हैं। ठीक है, तो हम इन पोस्ट और पेजेस का यूज करके ही एक नॉर्मल वेब एप्लीकेशन डिजाइन करेंगे। ठीक है, मैंने आपको शुरू की स्लाइड्स में बताया था कि वर्डप्रेस की हेल्प से हम सिर्फ ब्लॉग नहीं बनाते, हम एक पूरा का पूरा जो ई कॉमर्स सॉल्यूशन होता है वो भी डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, अ वेबसाइट इज बिगर एस्पेक्ट्स एंड इट लिमिटेशंस आर लिटिल टू एन। वेबसाइट कुड बी एनीथिंग फ्रॉम द सिंगल पेज टू हंड्रेड्स। कितने भी पेजेस आप बना सकते हैं, सिर्फ डेटा को प्रेजेंट कराने का एक तरीका है। यही डिफरेंस है आपके ब्लॉग में और यही डिफरेंस है आपकी वेबसाइट में। तो एक जो बेसिक था, यहाँ पे अपन ने देखा कि कैसे हमें वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया और कैसे इसको अपन देख रहे हैं। अब मैं आपको एक असाइनमेंट बता देता हूं। क्या आप ये बता सकते हैं कि, हाँ मैम, आपका कॉलेज का वेबसाइट का एड्रेस मुझे बताएंगे? Yes sir, I am sharing. हाँ Hello. हाँ, yes, हाँ, yes, Sir, infinitycollege.in. infinitycollege. .in. infinitycollege.in. Yes sir, yes sir. This is our websites, our college websites. Yes. Yes sir. तो मेरा एक क्वेश्चन है,
स्टूडेंट से हो सकता है फैकल्टीज को ये पता हो। स्टूडेंट से मेरा एक क्वेश्चन है, क्या आप मुझे बता सकते हैं क्या ये ब्लॉगर है, क्या ये वेबसाइट है, क्या ये किस पे बना है? वेबसाइट सर दिस इज वेबसाइट और ये वर्डप्रेस पर बना है सर। हाँ, ये वर्डप्रेस पे ही डिफाइन किया गया है। ये सर वेबसाइट, ये एक वेबसाइट है जिसको वर्डप्रेस पे ही बनाया गया है। सर दिस इज स्टैटिक वेबसाइट्स बिकॉज़ आपको इसमें लॉगिन सिस्टम दिया गया। Sir, please, sir, one question. Yes. Sir, how to know, sir, कि this is dynamic website, this is static website? देखिए सर, अब डायनेमिक और स्टैटिक का जो कॉन्सेप्ट है, इसको कई लेवल पे हम देखते हैं अलग अलग। सबसे पहला स्टैटिक का कॉन्सेप्ट ये होता है कि आपने कंटेंट बना दिया, ठीक है, प्री डिफाइंड। मान लेते हैं आपकी प्री डिफाइंड कंटेंट है, 10 से 15 पेजेस आपने बना के छोड़ दिए, जी, उनमें कभी चेंजेस नहीं होने। ओके। सब यूजर उसको लॉगिन, जब भी कोई यूजर आपकी वेबसाइट विजिट करेगा, देखेगा, तो वो लिमिटेड कंटेंट ही उसको दिखना है। जी। अब मान लेते हैं आपने यहाँ पे जैसे इंक्वायरी फॉर्म बनाया है, ओके। इंक्वायरी फॉर्म के साथ आपने एक लॉगिन सिस्टम दे दिया। जी। अब वो लॉगिन सिस्टम पे यूजर ने जब लॉगिन किया तो उसके लॉगिन में उसको अपना यूजर नेम दिखेगा। जी। अपन सपोज करते हैं कि यहाँ पे इसमें आपने बहुत सारे जो मान लेते हैं आप कोर्स का सेल कर रहे हैं, सपोज करिए कि आपने बोला कि बच्चे जो हैं कोर्स को एफिलिएट कर सकते हैं, तो जो बच्चा उसको एफिलिएट करेगा वो कोर्स की डिटेल वहां दिखेगी। तब आप उसको बोलोगे डायनेमिक हो गया, क्योंकि इसका नेचर अकॉर्डिंग टू यूजर चेंज हो रहा है। जी, लाइक आरजीबी वेबसाइट, जैसे सिंपल सर फेसबुक है आपका। यस यस। आप जब फेसबुक पे लॉगिन करते हैं तो उसमें आपको आपकी डिटेल्स, आपकी लॉगिन्स के हिसाब से, आपके लॉगिन क्रेडेंशियल के हिसाब से आपकी जो फ्रेंड लिस्ट है वो आपको विजुलाइज होती है। किसी के 100 फ्रेंड हो सकते हैं, किसी के उससे ज्यादा रहते हैं, और किसी के कोई अभी नया यूजर बनाया तो उसके कई कम फ्रेंड्स। जी जी। तो एक तरीका और मैं Another question in the chat box we have got from the Naveen Dhanwar. He is asking that sitemap क्या होता है और वेबसाइट में कैसे अपलोड होता है? नवीन जी, इसको एक्चुअली में साइट मैप जब आप बना रहे हैं तो ये एसईओ के लिए आप क्रिएट करते हैं, और ये जब ही बनाना चाहिए जब आपकी पूरी साइट बन चुकी है। पहली चीज तो आप इसको जब अपन ये पूरा साइट बना लेंगे अभी प्रैक्टिकल करके, तो आप एंड में उसके साइट मैप को बनाइए, जो पूरा का पूरा आपको ये बताता है कि भाई एक्चुअली में आप साइट मैप को ऐसे समझिए कि ये लिस्ट ऑफ पेजेस हैं आपकी वेबसाइट में। मान लेते हैं 1000 पेजेस हैं, 2000 पेजेस हैं, 50 पेजेस हैं, तो उसकी पूरी की पूरी लिस्टिंग जो है वो साइट मैप, आप साइट मैप जनरेटर्स, बहुत सारी वेबसाइट ऐसी होती हैं जो आपको साइट मैप जनरेट करके दे देती हैं। तो आप एसईओ को बढ़ाने के लिए, अपने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को बढ़ाने के लिए आप साइट मैप का यूज करते हैं। ठीक है, बेसिकली ये जो होता है ना, अगर अच्छा बेसिकली ये लिस्टिंग है, एक प्रकार की हेरारिकल लिस्टिंग। आप इसको ऐसे समझिए कि भाई डोमेन है, डोमेन नेम के अंदर आपने 4 में, जैसे यहाँ पे अगर आप देखें, आप अपने इंस्टीट्यूट की साइट देखें तो यहाँ पे आपको मेन, एक मिनट मेरी बटन क्लिक हो गई इधर पे, जैसे यहाँ पे आप देखें कि अबाउट अस है, तो ये आपके मेन मेनू हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे 10 आपके मेन मेनू हो गए, और अबाउट अस के अंदर ये सब मेनू है, और लीडरशिप के अंदर ये सब मेनू है। तो ये आपकी एक चेन बन गई। तो साइट मैप पे आप ये बनाते हैं, और पहले साइट मैप हम बनाते थे, लेकिन अब आपको गूगल पे साइट मैप जनरेटर्स मिल जाएंगे बहुत सारे, वो आपकी साइट का यूआरएल लेंगे और खुद ही साइट मैप बना के आपको रिटर्न कर देंगे, और आप उसको सर्वर पे अपलोड कर सकते हैं सीधे। और नॉर्मली साइट मैप जो होते हैं वो हम कई वेबसाइट्स होती हैं उनमें भी अपलोड करते हैं। गूगल के लिस्टिंग में भी साइट मैप को डाला जाता है। Sir, means like this website showing not secure. So sir, means it's like it's not provided secure connection like. यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये इन्फिनिटी कॉलेज के पहले जो नॉट सिक्योर आप देख रहे हैं, ये यस सर। देखिए क्या है,
ये ब्राउजर का फीचर है मैडम। ये ब्राउजर आपको बता रहा है कि ये सिक्योर नहीं है, पर सिक्योर का ये मतलब नहीं है। हाँ मैं आपको बता रहा हूं क्या है। अगर आप यहाँ पे HTTPS लिख लेंगे ना, नॉर्मली हो सकता है अभी इसमें है ना, तो जैसे ही अगर आपका सिस्टम HTTPS बेस्ड होगा, अगर आपका सर्वर HTTPS बेस्ड होगा, तो फिर वो सिक्योर के बदले आपको वहां पे एक शील्ड बन के आने लगेगी, और जितने बिट का इंक्रिप्शन आपने यूज किया है उसका यूज दिखने लगेगा। जैसे आप बैंकिंग की साइड में देखते हैं, जब आप बैंक की साइड ओपन करते हैं तो इंटरनेट एक्सप्लोरर में आपको ग्रीन कलर का बार दिखता है। वो जो फीचर है वो ब्राउजर आपको दिखाता है, और वो उठाता है कहां से, आपके सर्वर के डिटेल्स से कि आपका सर्वर क्या है। और कोई डाउट? So I think, sir, the assignment should be given to the participant that they have aware of that the Infinity College website is hosting on WordPress. हाँ, ये So, इसको बताने सर एक मिनट और लूंगा। इसको बताने का मैं एक तरीका और बताता हूँ, बहुत सिंपल है। शुरू में किसी ने डायरेक्टरी स्ट्रक्चर पे ध्यान नहीं दिया। मैं आपको एक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। मैं इस पेज का व्यू पेज सोर्स करता हूँ, आपकी इन्फिनिटी कॉलेज का व्यू पेज सोर्स करता हूँ, और अब आप यहाँ देखिए, इस लाइन को देखिए, infinitycollege.in/wp कंटेंट। ठीक है, कंट्रोल F WP। ठीक है, आप देखिए WP कंटेंट, WP इंक्लूड, WP कंटेंट, एक्चुअली में ये डायरेक्टरी स्ट्रक्चर वर्डप्रेस का होता है। तो आप हर जगह से वर्डप्रेस की लिंक हटा सकते हैं, लेकिन उसके डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते। तो ये भी एक तरीका होता है ये पता करने का कि भाई आपकी वेबसाइट किस पे बनी हुई है। ठीक है, तो ये आपकी जो मैंने यहाँ से देखा कि आपकी जो वेबसाइट है ये वर्डप्रेस पे बनी हुई है, और इसमें कॉन्टेक्ट के लिए जो फॉर्म यूज किया है वो कॉन्टेक्ट 7 फॉर्म होता है, उस प्लगइन का यूज किया गया है। ठीक है सर, आप देख सकते हैं। ओके सर, fine. So I think assignment should be kind of this. Ki what is I think participants will assign or will attend this session by tomorrow. By the assignment question is that what is search engine optimization, or is there any SEO is hired by the Infinity College of Engineering and Management Institute or not? Is there any search or keywords they are using? So what is the keyword they are using? Or it can be a suggestion that what should be a keyword to search to get engineering college in a topmost position. Fine. I hope कि ये क्वेश्चन क्लियर होगा। आई एम रिपीटिंग दिस क्वेश्चन। पहले तो आपको ये पता करना है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता क्या है, और उस एक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में कुछ एक कीवर्ड को सिलेक्ट किया जाता है। तो वो कौन से कीवर्ड है जिनको हम सिलेक्ट करके किसी भी एक इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस को या इन्फिनिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज को हम सर्चिंग में ऊपर ला सकते हैं। ओके सर, आई अंडरस्टैंड सर। Okay, so all of the participants, I hope this kind of question they have got. So by tomorrow we can join with the session. So with your permission, Professor Siddhartha Chaube, so can we conclude the session? Yes sir, yes sir. Yes. Fine. Fine. So as per the expert permission, I just want to conclude the session, and for which I just want to thank all the participants for the patience for learning, and I would like to thank Infinity College management. Those are involved in continuous activity for the student as well as the faculty members. We have so much lucrative events for the students, so be with us and do the assignment questions on regular basis and be attentive in the session. If you have any query, you just ask the question. Otherwise, you can just text to us, which we have created WhatsApp group for the students only. So that chat box link, I hope I have put in already in chat box. So just go through it. And the final thanks to the expert for the session, Professor Siddhartha Chaube. We are getting indulged with this type of activity since last 3 to 5 years, and I wish to best of luck
to all the participants also. And the coordinator of the program, Dr. Navdeep Kaur ma'am and SP Sahu sir and the management of the Infinity College. So without them cohesive support, it can't be possible to conduct such type of evening in such adverse weather position. So this is the conclusion ceremony. I would like to address a few number of things which we will discuss in tomorrow's session. So this is from our end. Any other questions if you have, so you just ask. Participants or coordinators can ask the question. Any other suggestion if you have? I would like to say to all participants, please be on time. It will be a session of 2 hours tomorrow too. That is from 6 p.m. to 8 p.m. So I would like to request